So yesterday we were talking, no, in the last session we were talking about the PPHN, persistent pulmonary hypertension, and we were discussing the management and the how you going to manage it. Okay. So in the last slide we have reviewed that to manage the PPHN, we need a proper oxygenation either by ventilation, by in either way. Some children can manage on only oxygen, some need ventilators, some need very advanced mode of ventilators like we have discussed high frequency type, and some may need ECMO as well. In addition to that, we need inotropic support, and we also need pulmonary vasodilators, and which include different type of vasodilators such as nitric oxide and sildenafil. So here is a one slide. Yesterday, show you this slide that vasodilation, we have different, ways. Okay. So how you going to vasodilate the pulmonary vessels? You have two pathways. Either you're going to activate the GMP pathway. Okay. This GMP pathway used by the nitric oxide, and this GMP in the presence of this PDES. PDES basically is your phosphodiesterase. This is your yes, phosphodiesterase 5 inhibitor. Okay, so in the presence of this phosphodiesterase inhibitor 5, it convert into the active form of GMP, and that GMP causes the smooth muscle vasodilation. So we have two ways. One use either use this pathway, the CGMP activation, or you have another pathway is to activate the CAMP via pathway of phosphodiesterase 3 enzyme. So we have different drugs which use this pathway. So this is a very good chart present in your SOP book. So I just shared this. You can see the how you're going to manage the pulmonary hypertension. So in this way, you can see over here, you have different options are there, which include oxygenation. We have discussed the one which is we discussed is the inhaled nitric oxide. So you can see inhaled nitric oxide is the very potent, it is a selective pulmonary vasodilator. It's a selective. So it's not the non-selective. It will just only vasodilate the pulmonary vessels, and it uses this cyclic GMP pathway. So very, very clear this mechanism of action of nitric oxide. Second, the most common drug is sildenafil. We use it in a daily basis. It's not an uncommon drug, sildenafil. Sildenafil also uses the same pathway just like the nitric oxide. You can see what is this sildenafil. Sildenafil is basically a phosphodiesterase 5 inhibitor. So I told you this enzyme phosphodiesterase inhibitor. It's an inhibitor. It increases the GMP level, and it endogenous act as an endogenous nitric oxide effect. So its effect is just like the nitric oxide. So the sildenafil is your phosphodiesterase 5 inhibitor. Both work on the same pathway. Then you have to know the another important drug which is bosentan. Bosentan is also used. So remember the word sentan. So bosentan, macitentan, ambrisentan. You do not need to remember this name. Just know the generic sentan. So bosentan, you can see it uses the what is the mechanism of action? It is basically the endothelium receptor antagonist. So what is the endothelium receptor? I showed you we have two ways. One is I showed you about the endothelium. There was a one slide. Let me show you again. So we have, you can see over here. So you can see the to manage the pulmonary vasculature. On one side, we have vasoconstrictors, and the other hand, we have vasodilators. So we have already discussed the vasodilator nitric oxide action, and we will going to discuss this prostacyclin as well in the last. It's coming on the way. But you can see the vasoconstrictor. So we have
Endothelin is a vasoconstrictor that is produced by your own cell, by your own body, and it causes the vasoconstriction. So where is the bosentan work? Bosentan basically act on this level. It is an endothelin receptor antagonist. So antagonist basically antagonize, or it do the opposite of it. Okay, so antagonize means do opposite. So it will block these receptors of endothelin, and it will not going to allow the vasoconstriction. Okay, so it's clear. So bosentan is a vasoconstrictor. It's a common medications that we use, so you should know about the mechanism as well, because in TAS this time the paper was difficult related to the pharma, so that is why we really want to focus on the pharma chapter wise as well, and in the end we also discuss all these things. Okay, so bosentan is an endothelian receptor antagonist, is competitively binds to endothelin 1 receptor, and it reducing smooth muscle cell proliferation as well. It not only causes vasodilation, it also reduces the smooth muscle cell proliferation. We all know that because of this smooth muscles proliferation, we have a pulmonary vascular resistance is there. The second, which I told you, along with the nitric oxide, there was written a prostaglandin. So these are the prostanoids. So you can see these prostanoids. These are also pulmonary vasodilators. It inhibitor of the platelet aggregation and act on the cyclic AMP pathway. And you have different ways: oral, sub-Q, inhale, or IV preparation. So these are the prostanoids. You can see over here, this is the prostaglandins. These are the prostanoids which use this cyclic AMP pathway. So these all are the medications which we use for the PPHN. Okay, so this chart you have to remember it and revise it. Okay, now we're going to solve this question. This is again from your SOP book. So now the question is, these are the different options are there. Bosentan, calcium. See, calcium channel blockers are sometimes also used. So see, the calcium channels are basically, the calcium channel blockers are the vasodilator as a overall. It is not the selective one. It causes systemic and pulmonary both vasodilation. Okay. So now we have this question that just to reinforce the things which we have discussed. So we have different options: bosentan, calcium channel, digoxin, furosemide, inhaled nitric oxide, magnesium sulfate, oxygen, prostacyclin analogs, sildenafil, spironolactone. So these are the list is above. Now first question is, which one the drug in front of you, the first drug result in elevation of the cyclic GMP. So it caused elevation of cyclic GMP and causing local vasodilation, means it act as local, it's act as selective. So which one of them is act or work on the GMP pathway? Yes. Inhaled nitric oxide. Very good. And which the other drug other than the inhaled nitric oxide, which other drug? Sildenafil. Sildenafil. Very good. Next drug is competitively. It's a competitive inhibits the vasoconstrictive effects of the endothelium 1 in the lungs. Which drug is this? Bosentan. Bosentan. Now, it slows the ventricular rate. It slows the ventricular rate in the children with secondary tachyarrhythmia. So it used in the tachyarrhythmias and it causes slow of the ventricular rate. Yes. Which drug is this? Digoxin. Very good. It's a digoxin. Very good. Okay. So answer you have already told me. Now we talk about the cyanosis. We have already started to discussion about the cyanosis. Now, first of all, what is the cyanosis? Definition of cyanosis appear when the body has 5 gram per DL deoxygenated hemoglobin. क्या मतलब हुआ कि जब बॉडी का जो ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ हीमोग्लोबिन ऑफ 15, ठीक है, 15 ग्राम, whenever the 5 gram become deoxygenated, for example 15 था और उसका 5 ग्राम जो है वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया, तो द चाइल्ड स्टार्टेड टू अपीयर साइनोसिस. ठीक है, तो साइनोसिस कब अपीयर होता है? when the body has 5 gram of deoxygenated hemoglobin. अब इसका क्या है फर्क? इसका ये सिग्निफिकेंस है, the baby which is polycythemic, those babies which are polycythemic, those baby will appear cyanotic at higher oxygen saturation
देन अ बेबी विद द एनीमिक। अब ये बात समझने के लिए मैं आपको आई गिव यू द एग्जांपल, आई शो यू द एग्जांपल। एक्चुअली कहना ये चाह रहे हैं कि जो पॉलीसाइथेमिक बेबीज होते हैं जिसका हीमोग्लोबिन अच्छा होता है, वो कम सेचुरेशन पे, लाइक फॉर एग्जांपल सेचुरेशन उस वक्त 80 चल रही होगी और वो अपीयर हो जाएंगे साइनोटिक, यानी कि वो हायर ऑक्सीजन सेचुरेशन पर ही साइनोटिक अपीयर हो जाते, जबकि एनीमिक वाले को साइनोटिक होने के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन सेचुरेशन कम करनी पड़ेगी। यानी कि अगर एक बच्चे का एचबी कम है 8 है, तो जब उसकी सेचुरेशन 60-50% होगी तब जाके वो अपीयर होगा एज अ साइनोटिक। लेट मी गिव यू द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। See, this is the first example in front of you. This is an infant 1. Hemoglobin is 20. So you can see the hematocrit is always 20 multiplied by 3. So it's a 60 is the hematocrit. So we're talking about the hemoglobin. So we will consider this value, the hemoglobin actual value, so 20. And at this time, the saturation is 75% on the monitor. So you can see that 75% ऑफ द 20 का 75% क्या होता है, जो 20 इसका हीमोग्लोबिन है, इसका अगर आप 75% 20 का निकालेंगे तो दैट वुड बी 15 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ग्राम हीमोग्लोबिन डीऑक्सीजनेटेड हो गया था, तभी वो बच्चा 75% सेचुरेशन पे ही क्या हो गया, साइनोटिक अपीयर हो गया। ठीक है, तो साइनोसिस अपीयर होने के लिए बॉडी में एटलीस्ट 5 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड। तो फर्स्ट बच्चा जो है वो उसकी सेचुरेशन इवन दो 75% थी और वो साइनोटिक अपीयर हो रहा था। अब सेकंड बच्चे को देखें, जस्ट टू गेट द वेरी क्लियर आइडिया। दिस इज अ सेकंड चाइल्ड एंड यू कैन सी ओवर हियर दैट दिस चाइल्ड हैज 10 ग्राम hemoglobin, and this 10 gram hemoglobin, the saturation was 50%, then he becomes cyanosis. उसका साइनोसिस कब शो हुआ, जब उसकी सेचुरेशन 50 पे जाके गिर गई, इतनी नीचे जाके। क्यों? क्योंकि इफ यू कैन सी द 50% ऑफ द 10, अगर 10 हीमोग्लोबिन का 50% निकाले तो वो बनता है 5 ग्राम। ठीक है, तो आपको बताया था कि अपीयर होने के लिए एट लीस्ट 5 ग्राम, जब डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो इसका 5 ग्राम अगर ऑक्सीजनेटेड है तो 5 ही ग्राम डीऑक्सीजनेटेड हो। तो जब 5 ग्राम डीऑक्सीजनेटेड हुआ, और वो कब हुआ, जब उसकी सेचुरेशन 50% के ऊपर गई, तब उसने शो किया। ठीक है, तो एनीमिक चाइल्ड इतनी जल्दी साइनोसिस शो नहीं करते, बॉडी में साइनोसिस होना शुरू हो चुकी होती, लेकिन जो पॉलीसाइथेमिक बच्चे हैं वो बहुत जल्दी जो है वो साइनोटिक अपीयर होते, और जब आप उनकी सेचुरेशन चेक करते हैं तो वो उस टाइम पे इतनी ज्यादा कम नहीं होती है। ठीक है, सो ये आपको जो है वो कैलकुलेशन वाइज क्लियर कर दिया कि व्हाट इज साइनोसिस। अब नाउ व्हाट आर द differentials for cyanosis in the newborn babies, especially we are talking about. We have already discussed the one cause. The one cause was the persistent pulmonary hypertension of the newborn, PPHN, also present just like the cyanosis. We have 4 other causes. Okay? The topmost always we think about respiratory cause. Second is the cardiac cause. Third is the PPHN. And 4 is the sepsis. So these all are the most common. Whenever the child, or not child, it's basically the baby, newborn baby, whenever the newborn baby presented to you with the cyanosis, always you should have 4 differences in your mind. So if you can see over here, what are the respiratory causes? So respiratory causes could be varied. It could be RDS, it could be meconium, it could be due to pneumonia, pneumothorax, pulmonary hypoplasia, CDH. Any respiratory cause can cause cyanosis. If you can see the cardiac causes, so cardiac causes may always remember the 5 T's, cyanotic 5 T's. So 5 T's, the transposition of the great artery, tetralogy of the phalate, tricuspid atresia, truncus arteriosus, total anomalous pulmonary venous drainage. So these are the topmost 5 important. We have others as well. You do not need to know all, but you should know these 5. These are the most important one which associated with the cyanosis. Next, how you going to differentiate between these 3? See, the sepsis, always whenever the child presented newborn, I'm talking about newborn, whenever the newborn presented with any complaint like
cyanosis, not taking feed, whatever. Sepsis would be almost the top. Okay, you will not exclude sepsis. The sepsis is the first thing. Either you are expecting sepsis or not, you should give antibiotics to the newborn. We all know this. But the important thing is how you're going to differentiate between respiratory, cardiac, and the PPHN. So you can see the most important first thing is in respiratory. First of all, the look of the child. So if you see the child, the cardiac cause of the cyanosis, if the child would be quiet, comfortable, but only slightly tachypneic. Slightly tachypneic is there, but there will be no effort, no increase in the work of breathing. The work of breathing would be normal. While in case of respiratory and the PPHN, there will be increased work of breathing, grunting, recessions, and all that. Now you can see the second point. What is the differentiate between? So for cardiac, why the child is tachypneic? So the reason for tachypneic is because of the metabolic acidosis. Why metabolic acidosis is there? Because the cardiac, we know that it's a cyanotic heart disease. The heart is not supplying the proper oxygen to the organs. So what happened at the level of the organs, the anaerobic metabolism will going to start. It will produce lactic acid that causes metabolic acidosis. So whenever in your body the acidosis is there, in compensation the body will start it to remove carbon dioxide from the body by doing increased respiration. The rate of the breathing will going to be increase only. So in compensation, the child will be tachypneic, but it would be comfortable, soft tachypneic. While in PPHN, we have already discussed the oxygen difference. Pre and post ductal oxygen difference is there, while in respiratory and cardiac there will be no such differences there. When you see the hyperoxia test, what is the hyperoxia test? You give 100% oxygen. So in the respiratory case, the oxygen will going to be improved. PaO2 will started to improve on hyperoxia test. Hyperoxia means you give 100% oxygen. So if the respiratory cause is there, you will have improvement. While in case of the cardiac case will not going to be improved, because the main difference of the hyperoxia test is to differentiate between the respiratory and the cardiac cause. While in PPHN, there is no such difference, is noted. Means you cannot comment on it whether they improve or no improve. No such. Hypoxemia is written over here, means the oxygen would be low. It will not be that much effective. Why? Because you can see over here in PPHN and in cardiac, the problem is related to the oxygenation. In PPHN, the blood is not going to the lungs for oxygenation. So if the blood is not going to the lung, so how much of the amount you will give oxygen externally, it will not going to be affect that much. Or if you can see the x-ray, so in the respiratory cause you will get the abnormality on the chest x-ray. While in case of the cardiac cases, so cardiac cases, the lungs could be black, completely black, or could be plethoric, means the increase in the vasculature markings. So the findings could be on either side. It could be black lung completely. The black lung shows that the blood is not flowing to the lungs. So if the blood is not going to the lungs will going to be appear completely black, just filled with the air. And plethoric means that excessive amount of blood is going into the lungs. So both of the situation can be found. So plethoric example may you have the topmost example is the total anomalous pulmonary venous return. So we will going to discuss what is total anomalous. While in case of black lungs, the most important example is the TOF. Now third is the in PPHN. So in PPHN, you know that there is a difficulty of the blood going into the lungs because of the extreme pulmonary hypertension. So you will get complete blackout lungs in case of PPHN. Okay. Now we're going to see, this is the black lung. So if you can see, the lungs would be very black. The vasculature marking in the periphery, you cannot appreciate it. And the heart shape is also just like boot shape. So this is the example of the tetralogy of the Fallot.
Now we're going to discuss the another case. Okay, so crash call to the emergency department. Now we're going to see how the cardiac diseases, how the cardiac, because we are talking about cardiology session. So now we will see how the cardiac disease is presented. So we have 4 to 5 ways to present it. Illustrated in illustrated pediatrics, you have already seen that there are 5 ways that the cardiac disease will present. The first case is how the first baby presented. Okay, who will going to read this case? Mm, I'm reading. Okay, please read it. You are crash called urgently to the emergency department to attend to Rohan, a 7-day-old baby boy who has been brought in via ambulance after he was found unresponsive 20 minutes ago by the parents. He was doing fine until last evening when his parents noted he was a bit off color and didn't take his feeds as well as usual. He was born at term weighing 3.5 kg and had a normal first day examination, which included preductal and postductal oxygen saturation screening. There were no risk factors for sepsis, and he was discharged home at 8 hours of each. On examination, his airway is patent and he is receiving 100% oxygen via non-rebreather mask. His respiratory rate is 20 per minute with shallow respirations. His oxygen saturations are unreportable. His heart rate is 170 per minute with capillary refill time of 4 seconds centrally. He is pale and mottled. His chest is clear and he has a 1/6 systolic murmur. The anesthetist intubates and ventilates him. Venous blood gas results are pH 6.99, base excess -18, blood glucose of 3.4 mmol per liter. You give him a 20 ml per kg bolus of saline and his heart rate is 150 per minute with capillary refill time of 2 seconds centrally. Okay, so let me summarize the very important point quickly. First of all, look at the age, the 7-day-old baby. आपके पास come to with the unresponsiveness, okay, and the child was fine until last evening. So you can see the presentation of the disease present at the 7th day of the life. Okay, he was bit of the color and he was not taking feed. The before the discharge, the preductal and postductal oxygen saturation screening was okay. Now they told you there is no risk factors for sepsis is there. Okay, the child on receiving 100% oxygen and he was on non-rebreather mask. You can see the child was having has shallow respiration. So he was on shallow respiration and still the oxygen saturations are unreportable. And if you can see the capillary refill time and heart rate is prolonged, he is pale and motile chest is clear. This murmur is insignificant. 1/6 murmur give no value, no such information. Anesthetist intubate him, and if you can see the ABGs, it shows severe metabolic acidosis because base excess is -18. And when you give the bolus, the child started to have capillary refill time improve. With this scenario, what would be your differences in your mind? Yes, Aline, first, quick. It might be PPHN first, metabolic acidosis, intracardiac shunting की वजह आपको से. क्या बात बताई यहाँ पे? ये देखो, पहले ही उन्होंने ये बात आपको बताई. Preductal, postductal oxygen saturation screening was okay. The child was okay till 6th day. The child was okay. Preductal, postductal में कोई difference नहीं है. Then why you are thinking about PPHN? Okay. अदर डॉक्टर सबीका आप बताएं, डॉक्टर सोबिया आप बताएं इसके डिफरेंसेस. एक डक डिपेंडेंट लीजन हो सकता है, डक क्लोज हुई तो बच्चा कोलैप्स हो गया. ठीक है, डक डिपेंडेंट, वेरी गुड. नेक्स्ट डॉक्टर सोबिया आप बताएं, और बताएं, जल्दी जल्दी बताएं. देखिए, मैंने एक बात आपको बतानी है, एग्जाम में ये बात दिमाग में रख लें, न्यूबॉर्न्स में दिमाग में रख लें, जितना भी उन्होंने बोला हो कि नो रिस्क फैक्टर फॉर सेप्सिस, still sepsis 3 times sepsis should come into your mind, then only other differential. Drug dependent is a very good because we are already discussing the cardiology, हमने वो माइंड में रखा और हमें इस एज में रखना भी है. ठीक है, थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके इस तरह प्रेजेंट करते हैं, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, because you can see severe metabolic acidosis is there. So severe metabolic acidosis could be a part of inborn error of metabolism. Okay, so these are the topmost differentials when the child newborn presented with collapse. So collapse state में present करेगा, first thing sepsis, second thing any cardiac cause, third could be the inborn error of metabolism. ठीक है,
So think about these three are the top most important. Okay. Now we see the first question. What is the first question? Okay. So the first question, if you can see over here, that what is the most important next management? They are asking about what is the most important. E में जो है वो intravenous prostaglandin है. So what is up? Aleem, you were going to answer this question. What is the most important next management step? Option A, एक उन्होंने bolus दे दिया था 20 ml का and the child responded. So what will you going to do? Will you going to repeat the bolus? Will you going to give dextrose? The RBS was 3 millimole. Will you give IV antibiotics or IV prostaglandin? Yes. IV antibiotics first. Very good. I want to listen this because what I told you, sepsis, first think about sepsis. So always give a shot of antibiotic and then think about later other things. Okay. So what happened? Resuscitation continues. When he's stable, thoda stable ho gaya, chest radiogram is performed. Chest radiogram performed showing an enlarged heart with pulmonary plethora. So what they give you the clues? The enlarged heart. Now ab heart ki taraf leke ja rahe. Enlarged heart with pulmonary plethora. Despite 100% oxygen, Rohans continue to have saturation of 70% and a repeat blood gas failed to show a significant improvement to the metabolic acidosis. So we have already discussed metabolic acidosis is a part of cyanotic congenital heart disease. So what are the clues which are giving you towards think about cardiac? Hyperoxia test, the child is not improving on the hyperoxia test. The child is having enlarged heart with pulmonary plethora. We don't know, but they are giving some clues. Next, we have a metabolic acidosis, which is not improving on the bolus. आपको दरवाजा खोलो. Okay, next. Now we have okay. So up next question आपका क्या है कि okay, what is the most likely diagnosis? So based on this information, what is your most likely diagnosis? Yes, what is the most likely diagnosis? We have already discussed the clues. The most likely diagnosis would be the congenital heart disease. Which type of congenital heart disease present in this way? Okay. So now what would be the next most important management step? Yes. Who will give the answer of this question? Prostate Okay. Urgent echocardiogram. No, why urgent echocardiogram? Do you think every system, every setup has echocardiography available urgently? No. So, what Dr. Sabika told you, it's a duct Duct dependent. dependent. So, what you D. want to do? You want Option to D. keep the duct open. The child is why the child collapsed because the duct was closing. So urgently you want to keep the duct open and we will going to discuss what are the duct dependent lesions and why the child collapse. Okay, is it clear? This point is Yes, clear? clear. Clear. Okay, now we are moving to the next slide. Okay. Okay, now we talk about how these are the different mechanism why the child collapsed. So one of them I didn't mention, that was NAI. So always think whenever the child suddenly collapse, think about NAI as well. See, the child, we don't know what was happened to that baby. So we should always suspicious because safety of the child is our concern in UK. Okay, so that is why we always think NAI in our differentials as well. So these are the topmost differentials whenever the child presented with the collapse.
Okay, so first is the septicemia. We have already discussed. This is the most common cause, and we need urgent and IV antibiotics. Now, what are the points which favors in this case? What are the points in Hyperoxia, plethoric lung fields थी, persistent metabolic acidosis थी, despite adequate fluid resuscitation. And the important thing is that normal newborn examination does not exclude CHD. Even though they told you that you didn't find any murmur at the time of newborn examination, preductal, postductal is okay, everything was okay at the time of birth, still it did not exclude congenital heart disease. Please remember. Okay. Second Okay. thing, heart murmur could be absent in critical heart diseases. So if you talk about the critical heart disease are the drug dependent type. So in that situation, the heart murmur either could be absent or it would be of very low grade. Just in our case, it's 1/6. So if they didn't mention you, if they didn't mention about murmur, or if they mention in a very low, like 1/6, still it does not rule congenital heart disease. Pulse oximetry is a part of newborn screening, but it helps in detecting right-sided problems. Okay. Femoral pulses and blood pressure measurement has an utmost importance, and if abnormal could give clue to the serious heart problems of the left side. So you can see you have two types of the problem related to the duct. One is of right side problem and second of the left side problem. So always remember, whenever you are examining the newborn, two things are very, very important: femoral pulses and the blood pressure measurement. You see, if you detect these early, if you detect there is a problem in the femoral pulses, like the femoral pulses are not palpable, or they are weak, or the blood pressure measurement, but blood pressure changes are there, then you could, it can give you clue to the left sided problems. Okay. So now we will talk about what are the right sided problem, what are the left sided problems. So this is very important. Always remember, femoral pulses and blood pressure are a very, very important part of the cardiac examination. Now, presentation of congenital heart disease, what I told you, that presentation of the cardiac heart disease can present antenatal in ultrasound. So the antenatal can give you idea about that there is some pathology in the cardiac. It could be detected by the murmur. It is very common that child presented with other complaint, and when we auscultate it, we find the murmur, then we go for the echo. So it can detect on the basis of murmur. They can present with the heart failure as well, and they can present with the shock. So in our case, the presentation was shock. The child presented with shock. The child was tachycardic. He has poor pulses. He has prolonged capillary refill time along with severe metabolic acidosis. And it can present with the cyanosis. So these are the different ways how the cardiac diseases can present in a newborn or in a childhood. Okay. So now we talk about the duct-dependent congenital cardiac disease. So we know that they can be divided further into two types. So from some congenital heart disease, what do you mean by duct-dependent heart disease? It means that some of the congenital heart defects are dependent on the patency of the duct. In order to maintain survival, तो survival के लिए उन्हें लाजमी duct open चाहिए. लेकिन डक्ट जो है वो नेचुरली इन अ फीटस तो ओपन रहती है, बट वंस द चाइल्ड बॉर्न 24 to 48 आवर्स में फंक्शनल जो है वो डक्ट का क्लोजर हो जाता है, और कंप्लीट डक्ट जो है वो 3 वीक्स में डिसअपेयर हो जाती है. ठीक है. तो डक डिपेंडेंट लीजन्स कार्डियक वो कौन से होते हैं? जो डक डिपेंडेंट होते हैं, जब डक बंद होने लगती है तो वो प्रेजेंट करते हैं. तो उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो डेफिनेटली विद इन अ वीक हो जाती है. तो दैट इज व्हाई द डे ऑफ लाइफ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दे प्रेजेंट at the day of 3, 4, 5. It means it present in less than 1 week. They are dependent, or they are divided into two categories. The dependent on the duct dependent to blood flow to the pulmonaries. The other way, that they are dependent on the duct to maintain systemic circulation. So we're going to discuss these points. What do you mean by this? So just see this.
Okay, so in both group, either what do you mean by this? ये कि डक पे डिपेंड कर रहे हैं पल्मोनरी में फ्लो होने के लिए, यानी कि अगर डक बंद होने लगेगी तो पल्मोनरी में ब्लड नहीं जाएगा. दूसरे में बोल रहे हैं कि अगर डक बंद होगी तो सिस्टमिक सर्कुलेशन नहीं हो पाएगी, एओर्टा में ब्लड नहीं जाएगा, बॉडी में ब्लड नहीं जाएगा. इन दोनों में कोई भी सिचुएशन हो, दोनों में आपको डक्ट को ओपन करना है. जब डक्ट को ओपन करना है तो फर्स्ट स्टेप इज टू इनिशिएट ऑलवेज प्रोस्टाग्लैंडिन. So it would prevent arterial duct closing, and it could re-establish patency if closure has occurred. So prostaglandin not only prevent ductal closing, but it can also re-establish the patency as well, and it restore the blood either to the lung if it is related to the right-sided problem, or it will establish the blood to the body if it is related to the systemic problem. So what are the clinical features? So clinical features we have already discussed. They usually present sick, heart failure and shock in the neonatal period. तो एक वे तो ये है जो कि सिस्टमिक टाइप होते हैं, जिसमें बॉडी डिपेंड कर रही होती है, एओर्टा में ब्लड नहीं जा रहा, बॉडी में ब्लड नहीं जा रहा, दे विल गोइंग टू प्रेजेंट एज अ शॉक. तो दूसरे जिसमें पल्मोनरी में ब्लड नहीं जाएगा, दे विल गोइंग टू प्रेजेंट विद सीवियर साइनोसिस. तो दो प्रेजेंटेशन है डक डिपेंडेंट की, ईदर दे कैन प्रेजेंट विद सीवियर साइनोसिस or they can present with shock, or they can present as a mixed picture. Sometimes it is very difficult. Shock की state होती है तो saturation भी pick नहीं हो रही होती, cyanosis ही रहता है, so it is very difficult. So it can present in a very sick child, very severe type. Sepsis, PPHN, inborn error. So findings are very non-specific. So in these three conditions, sepsis, PPHN, inborn, the situation is the same. The child can present with shock, can present with the cyanosis. So always you should have these differentials in your mind when you are suspecting the congenital heart disease. So duct dependent, what are the systemic diseases? Systemic which related to the duct, you have three main important diseases. The first is the coarctation of aorta, the second is the interrupted aortic arch, and the third is the hypoplastic left heart syndrome. Now I'm going to tell you how it is dependent. The first thing is the hypoplastic left heart syndrome. So if you can see the picture first, then we're going to come on this reading. So you can see in this picture that the heart, the left side of the heart is completely regressed. It is hypoplastic. So you can see in the hypoplastic left heart syndrome, there is underdevelopment of the entire left side. So entire left side means the mitral valve, the everything. The mitral valve is small. The atritic, the left ventricle is diminutive, and there is usually aortic valve का भी atresia है. तो overall पूरा का पूरा साइड, लेफ्ट साइड जो है वो एट्रेटिक होता है, मिट्रल वेल्व भी नहीं बनी हुई होती. फिर नीचे, क्योंकि जो आपकी जो फॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है ब्लड फ्लो पे, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ मिट्रल वेल्व, जैसे ट्राइकस्पिड एट्रीजिया होता है, इसी तरह अगर मिट्रल वेल्व का एट्रेटिक है, वेल्व सही तरह बनी हुई नहीं है, जब फ्लो आएगा ही नहीं, ब्लड फ्लो वेंट्रिकल में नहीं आएगा तो वेंट्रिकल की फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगी. जब वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आएगा तो एओर्टा में कैसे जाएगा, तो एओर्टा की भी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी. तो यू कैन सी ओवर हियर द एओर्टा इज आल्सो वेरी वेरी स्मॉल, so the whole left sided part become atretic. So you can see the ascending aorta is very small, and there is almost invariably coarctation of aorta is also there. So you can see along with the hypoplastic left heart syndrome, they will always have, invariable, almost always have coarctation of aorta as well. You can see this constriction, you can see over here this constriction of this आर्च ऑफ एओर्टा के अंदर कंस्ट्रिक्शन है, ठीक है. तो ये कोआक्टेशन है. तो अब क्या होगा कि जब लेफ्ट साइड में ब्लड आ ही नहीं रहा तो बॉडी को कैसे मिलेगा, तो बॉडी को मिलने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है, ये देखेंगे पल्मोनरी से ब्लू ब्लड गया और ये डक्ट के जरिए होता हुआ इसने वो जो है वो आपकी असेंडिंग डिसेंडिंग एओर्टा को इसने ब्लड दिया है, ठीक है. क्योंकि यहाँ से तो लेफ्ट साइड तो बना हुआ ही नहीं था, तो यहाँ से कोई ब्लड आ ही नहीं रहा था एओर्टा को. एओर्टा को सिर्फ और सिर्फ देखो ब्लू ब्लड ही मिल रहा है जो पल्मोनरीज के अंदर था, और वो किस वजह से आ रहा है आपका, सिर्फ और सिर्फ ये वाला ब्लड जो है वो
पीडीए के जरिए आ रहा है। अब अगर ये पीडीए भी बंद हो जाएगा, पीडीए जब नेचुरली बंद होगा, तो डू यू थिंक कि इस एओर्टा के अंदर ब्लड किसी भी तरीके से जा सकेगा? कोई ऐसा कनेक्शन आपको नजर आ रहा है जो कि एओर्टा को कनेक्ट कर रहा हो, कहीं से इसको ब्लड मिल रहा है? नहीं। जब बॉडी के अंदर ब्लड जाएगा ही नहीं, तो डेफिनेटली बॉडी में क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। तो ये वाली डिजीज जिसमें नो ब्लड, कोई ब्लड नहीं जाएगा, अगर डक बंद होगी, तो ये प्रेजेंट करेगी as a sick child, as a shock child, and under 1 week of the age. Okay. The first thing is the hypoplastic heart disease. Okay, and what about the others? So hypoplastic heart disease, mein what they write, these children detected antenatally. The good thing is that most of these children, because of the very small part of the left ventricle, they detected antenatally. दिस अलाउ फॉर अफेक्टिव काउंसलिंग। तो आप पहले से ही अफेक्टिव काउंसलिंग कर देते हैं एंड प्रिवेंट्स द चाइल्ड फॉर बिकमिंग सिक। ऐसे चिल्ड्रन को जब आप डिटेक्ट कर लेते हैं एंटीनेटली, उसको आप पैदाइश के फौरन बाद यू विल स्टार्ट द प्रोस्टाग्लैंडिन। यू डू नॉट वांट टू child become sick. Okay, you don't allow the child to become sick. If they do present after birth, they are the sickest of the all neonates, presenting with the duct डिपेंडेंट सिस्टमिक सर्कुलेशन। आपने 3 इंपॉर्टेंट डक डिपेंडेंट सिस्टमिक पढ़ा कि जहां सिस्टम में ब्लड फ्लो नहीं जा रहा, उसमें से जो सबसे ज्यादा सिवियर है वो यही है, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम वाले। देयर इज नो फ्लो एट ऑल थ्रू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, so duct constriction leads to profound acidosis and rapid cardiovascular collapse. There is a weakening or absence of all peripheral. This is the important, most important point. It will tell you about HLH. In your scenario, they will give you this point: absence of all peripheral pulses. In coarctation of aorta, you will see that there will be only the absence or weakening of only femoral pulses. But in HLH, because the blood is not going anywhere in the body, it's not going, so you have absence of all peripheral pulses, in contrast to weak femoral pulses in coarctation of aorta. So in coarctation, they will tell you only about weak femoral pulses in femoral. Okay, femoral pulses are weak. While in case of HLH, they will clear mention you that all the pulses are weak. Need multiple surgeries, but overall the prognosis is very, very poor. Okay. Next, we have another condition is the coarctation of aorta. So coarctation of aorta is basically, yes, why coarctation is presented with collapse. So we already discussed there are 2 types of coarctation of aorta. Always remember 2 types of coarctation of aorta. One is pre-ductal, एक ductal से जो है वो पहले का होता है. See, first of all, see this diagram. We have 2 types of coarctation of aorta. So first, see this type. The first type is postductal. So if you can see over here in this picture, postductal and preductal, why I'm emphasizing on it? Because both are present in different ways. The presentation is different. Why? If you can see in the first picture, postductal. So this is your duct. You can see I marked with the circle. This is postductal. And you can see constriction is after this duct. So constriction is after this duct. The first thing is that. The second is around the duct. The जो आपकी constriction है, pre-ductal भी कह सकते हैं, around the duct area. ठीक है, duct के साथ ही जो है, ये duct के साथ ही आपकी constriction है. It is called pre-ductal. What do you think? दोनों में से कौन सी टाइप है? कौन सी टाइप है दोनों में से जो कि प्रेजेंट करेगी एज अ कोलैप्स चाइल्ड? प्री-डक्टल वन और द पोस्ट-डक्टल वन? यस, आप गेस करो. कुछ समझ आ रहा है ये क्यों 2 अलग अलग डायग्राम्स बनाई गई हैं? जो न्यूनेट्स में जो कौन सी फॉर्म प्रेजेंट करेगी डॉक्टर सबिका? कैन यू गेस? प्री-डक्टल. वेरी गुड, वेरी गुड. प्री-डक्टल. व्हाई प्री-डक्टल? बिकॉज जब पीडीए बंद होने लगेगा, जब ये वाला एरिया कंस्ट्रिक्ट होगा, इसके साथ ही ये कंस्ट्रिक्शन है ना, जब पीडीए बंद होने लगेगा तो मजीद इसके अंदर कंस्ट्रिक्शन बढ़ जाएगी, मजीद वो एरिया, क्योंकि बिल्कुल इसके साथ ही अटैच हुआ है. ठीक है,
तो जब डक्ट का क्लोज होगा तो अल्टीमेटिवली इस पे भी स्ट्रेच आएगा और ये एरिया फर्दर नैरो हो जाएगा, इतना नैरो हो जाएगा कि ब्लड उसके बाद वाले हिस्से में जा ही नहीं सकेगा, उससे पहले तो होगा उसके बाद नहीं जा सकेगा, ठीक है। सो प्री डक्टल जो होगा विल प्रेजेंट एज अ कोलैप्स चाइल्ड इन द न्यूबॉर्न पीरियड। हाउ द पोस्ट डक्टल प्रेजेंट, डॉक्टर अलीम, हाउ द पोस्ट डक्टल कोऑक्टेशन एओर्टा प्रेजेंट? with severe cyanosis. साइनोसिस नो, ये तो सिस्टमिक है। देखो सिस्टमिक में तो ब्लड बॉडी को नहीं जा रहा ना, तो साइनोसिस नहीं आती। ऑलवेज रिमेंबर, साइनोसिस जब आती है जब लंग्स में ब्लड नहीं जा पा रहा, कोई भी ऐसी वजह हो कि लंग्स में ब्लड नहीं जा रहा, ठीक है, तब आप साइनोसिस बोलोगे। अगर सिस्टम में ब्लड Right. नहीं जा रहा तो आप बोलोगे शॉक है, जैसे अभी हमने केस पढ़ा है कि ब्लड सिस्टम में नहीं जा रहा किसी भी तरीके से। तो हाउ दिस प्रेजेंट, पोस्ट डक्टल कैसे प्रेजेंट करेगी? डॉक्टर सोबी आप बताएं। हाइपरटेंशन की तरह आ सकती है, इसके अलावा Very डिफरेंशियल साइनस हो सकता है। डिफरेंशियल साइनोसिस इसमें नहीं होगा, डिफरेंशियल साइनोसिस कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा में तो नहीं होगा। ये वाली जो है वो प्रेजेंट करेगी आपके पास एज अ चाइल्डहुड, बड़ा बच्चा होगा या छोटा बच्चा जो भी है, और आपको हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट होगा। अचानक से आपने ब्लड प्रेशर चेक किया या उसकी कंप्लेन थी हेडेक की और इतना ज्यादा हाइपरटेंशन है, तो उसमें जो है वो आपकी ये पोस्ट डक्टल टाइप है, ठीक है। तो दैट इज वाई कोऑक्टेशन में वेरी वेरी क्लियर होने चाहिए कि इसकी दो प्रेजेंटेशन है, ओके। So now we are talking about, we are concentrating over the preductal form, okay? डिफरेंशियल साइनोसिस क्यों नहीं होगा? हमें पल्सेस का तो डिफरेंस मिलता है ना कि फेमोरल पल्स हमारी कम हो रही होती है। डिफरेंशियल साइनोसिस जब होता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जब आपके पास डॉक्टर सोबिया राइट टू लेफ्ट शंट हो। जब आपके पास शंट नहीं है, ब्लड अगर किसी भी तरीके से पल्मोनरी से एओर्टा में मिक्स नहीं हो रहा, तो जब मिक्सिंग नहीं होगी तो डिफरेंशियल साइनोसिस नहीं बने। डिफरेंशियल साइनोसिस के लिए यू शुड हैव मिक्सिंग ऑफ द ब्लड एट द लेवल ऑफ पीडीए, जो कि सिर्फ एक ही सिचुएशन में होता है, जो कि पीपीएचएन है, ठीक है। पीपीएचएन है और दूसरा ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज है। यहाँ पे हो रही होती है आपकी मिक्सिंग, जहां मिक्सिंग होगी ना वहां पे आपको डिफरेंशियल साइनोसिस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसे पीडीए बंद हो जाएगा ना, नॉर्मली बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई ऐसी मिक्सिंग नहीं है ब्लड की, दैट इज व्हाई यू डू नॉट हैव अ डिफरेंशियल साइन। Okay, so what is a coarctation of aorta? So coarctation of aorta is the most common cause of collapse. Due to the most common cause if they are talking about कि left sided outflow obstruction, कि left की outflow में कौन सा aorta, कि aorta में blood जो है ना properly नहीं जा पा रहा, वहां पे obstruction है। ये मोस्ट कॉमन कॉज है रिलेटेड टू लेफ्ट साइडेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। बट मोस्ट सीरियस इफ दे आर टॉकिंग अबाउट दैट इज एचएलएच। दिस इज ड्यू टू द आर्टीरियल डक्ट टिश्यू। दे आर टॉकिंग जो आपका पीडीए है, जो आर्टीरियल डक्ट टिश्यू है, इंसर्कलिंग द एओर्टा, एओर्टा को इंसर्कल करेगा जस्ट एट द पॉइंट ऑफ इंसर्शन ऑफ द डक्ट। तो इंसर्शन ऑफ द डक्ट के अराउंड ही कंस्ट्रिक्शन मौजूद है। सो व्हेन द डक्ट क्लोजेस, द एओर्टा आल्सो कंस्ट्रिक्ट, causing severe obstruction to the left ventricular outflow. The neonates usually present with acute circulatory collapse, ठीक है। कभी भी साइनोसिस ना सोचना लेफ्ट साइडेड पे, साइनोसिस आ रहा हो तो राइट साइड सोचना। तो ये कोलैप्स की तरह प्रेजेंट करे। कोलैप्स में किस तरह से सिचुएशन होती है? सिवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, आपको जो है वो बिल्कुल शॉक लाइक स्टेट है, ठीक है, एट 2 days ऑफ द एज व्हेन द डक्ट क्लोजेस। तो ये यूजुअली प्रेजेंट कर जाएंगे लेस देन 1 week ऑफ एज में। सिक बेबी विथ शॉक, absent femoral pulses with severe metabolic acidosis. Surgical option depends, either you resect the normal narrow segment and follow by re-anastomosis is performed soon after the diagnosis. So early surgery आपको करनी होती है, जो नैरो सेगमेंट है उसको कट करके निकालना होता है और जो प्रॉपर सेगमेंट है उसको दोबारा से री-एनास्टोमोस करना है। तो वेरी सिंपल, ये जो आपका ये वाला जो एरिया है, ये वाले एरिया को आप कट कर देंगे और जो नॉर्मल एरिया उसको आप आपस में री-एनास्टोमोस कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज फॉर कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। नाउ द थर्ड जो हमने क्या पढ़ी, इंटरप्टेड एओर्टिक आर्च। अब इंटरप्टेड एओर्टिक आर्च में आपको जो है ना वो डॉक्टर सोबिया, आपको वहां पे साइनोसिस मिलती है जो आप कह रहे थे ना अभी, वहां पे आपको डिफरेंशियल साइनोसिस मिलती है। नाउ आई टेल यू हाउ। This is interrupted aortic arch. So what happened in interrupted? You see over here,
इंटरप्टेड, पहले पिक्चर को समझे कि देखें कनेक्शन ही इंटरप्ट हो गया ना। अब आप देखिएगा, दो कंडीशन मैंने लास्ट टाइम बताई थी अपने लास्ट लेक्चर में, ये देखें आप, ये कनेक्शन ही इसका ब्रेक हो गया, पूरा आर्च का जो कनेक्शन था जो मैंने पिंक से बनाया, ये ब्रेक हो गया। अब आप ये देखें, जब ब्रेक हो गया तो जो ब्रेक होने के बाद वाला जो पार्ट था उसको पीडीए सप्लाई कर रहा है, ठीक है। ब्लड कहां से जा रहा है? पल्मोनरी से जा रहा है इनटू द एओर्टा। और उससे पहले जो पार्ट था, जो ये वाला जो पार्ट है, जो अभी मतलब इंटरप्टेड होने से पहला वाला पार्ट है, उसमें पिंक ब्लड है। तो आपकी अपर बॉडी के अंदर आपकी राइट हैंड के ऊपर पिंक ब्लड है, एंड आपकी जो नीचे वाला पार्ट है, लेफ्ट साइडेड हैंड है, आपकी दोनों लेग्स हैं, उसमें ब्लू ब्लड। और ये ब्लू ब्लड कहां से आ रहा है? पीडीए से आ रहा है। So that is why you have differential cyanosis. So you have two conditions for differential cyanosis. The first one was the PPHN, which I explained in previous lecture, and this is the second example which I told you. Okay, when this come, I will explain. So this is the interrupted aortic arch. Is also the example of the differential cyanosis. Okay. So uncommon. This condition is, even though uncommon, no connection between the proximal aorta and the distal to the arterial to the arterial duct. तो ये जो arterial duct है, PDA के बाद वाला जो distal aorta है और proximal उससे पहले वाला, उसका कोई connection नहीं है. Cardiac output, it's depend on the right to left shunt. So you can see the shunt coming over here. Because of that shunt, right to left shunt via duct. So when this duct close, Aleem, जब ये duct close होगी, डू यू थिंक कि उसके बाद जो नीचे लोअर बॉडी में ब्लड किसी तरह जा सकेगा? नो, ब्लड विल कट। नो नो। तो जब ब्लड नहीं जाएगा बॉडी में नहीं जा रहा, तो फिर क्या होगा कि प्रेजेंट करेगा एज अ शॉक. बट नॉर्मली व्हाट दे आर सेइंग, normally the VSD is usually present. So in interrupted aortic arch, if you have a VSD, do you think due to this connection, VSD की वजह से भी हार्ट में किसी भी तरीके से यहाँ पे ब्लड आ सकता है? हमें हमेशा पिक्चर बनानी होती है. भले से VSD मौजूद है, भले से आपस में यहाँ पे लिंक मौजूद है, कनेक्शन मौजूद है इनका, लेकिन इसके बावजूद भी चाहे मिक्सिंग भी हो जाए, तब भी अगर पीडीए बंद होगा, पीडीए के बाद वाले पार्ट में किसी भी तरीके से ब्लड नहीं आएगा. ठीक है. प्रेजेंटेशन विल बी शॉक, डिफरेंशियल साइनोसिस विल बी प्रेजेंट, कंप्लीट correction with closure of the VSD and repair of the aortic arch is usually performed in the first few days of life. And association, always remember, जो trunk के problem है, आप अभी आपने शायद वीडियोस देखी हो जो मैंने भेजी थी आपको, कि ये जो कोनो ट्रंक, जो ट्रंकस आर्टेरियोसिस है आपका, जो इनिशियल है, वो फॉर्म करता है आपका एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी. तो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, they are more common with the Dijot syndrome. Always remember, Dijot syndrome has a very strong association with conotruncal problems. Okay, trunk related problems. Okay. So just after this, Azan is going on, so we are taking namaz break over here. So after namaz, we will resume. So just take a 10 minutes break. It's 6:05. Come back at 6:15 quickly. Okay, so just break. thank you. So we have discussed the left-sided problem. It's just the summary. We all know that all present with circulatory collapse, all have absent femoral pulses. And the difference between is very important. You can see in coarctation, only the femoral pulses would be absent. In interrupted, all interrupted may be absent femoric pulses and absent left brachial pulse. So there would be right brachial pulse would be present. So these are the differences which are very much important. In hypoplastic, the all peripheral pulses are absent, but all of them will present as a circulatory collapse, and the management would be same for all. The maintain ABC and initiate prostaglandin infusion as a start. Now we talk about the duct dependent lesions related to the right side, which means that, like in the previous we discussed, that the systemic flow is not going, blood flow is not going to the body, but in these lesions,
the blood is not going to the pulmonary system. So we have two main diseases, pulmonary atresia, tricuspid atresia with pulmonary stenosis or atresia. So we will discuss those, but how they're going to present, I told you, if the blood is not flowing to the lungs, they will present with severe cyanosis and tachypnea in the neonatal life. And as the initial management, they require prostaglandin and along with that, surgical correction. Okay, now first is the tricuspid pulmonary atresia. So what is pulmonary atresia and pulmonary stenosis? In pulmonary atresia, the valves are completely atretic. Bilkul, you can see over here in this picture, there is no valve. Actually, there is no valve, complete atresia of the valve. No valve, you can see the tricuspid pulmonary valve is not over there. So blood flow is not going to the lungs. So how the blood is going? So you can see over here in pulmonary atresia, you have a VSD over here. So you can see blue blood is mixing into the red that causes purple in color. Purple goes to the aorta and from the aorta through the duct, the blood coming into the pulmonaries. But the blue blood from the right ventricle, you can see the blue blood from the right ventricle is not going anywhere. You can see this blood, the blue blood is not going into the pulmonaries. In pulmonary, only the blood coming from the aorta. Okay, so if the duct started to close down, definitely no blood will be in this circulation. No blood will be in the pulmonaries. Severe cyanosis and tachypnea is present. How you going to manage this condition? After initial management with prostaglandin, the first operation which we going to do is called Bella lock tossing shunt, which we also call is BT shunt. Okay, so what is the BT shunt? Yes, Dr. Aleem, what is the BT shunt? You know better than us. In BT shunt, we usually made a connection between right pulmonary artery and subclavian artery. See, it's a connection from the subclavian artery. So you can see over here in this diagram, you connect the one of the branch of aorta because you want to make some connection. Okay, because in pulmonary the blood is not going anywhere because the valves are completely atretic. So you made some connection. So in this picture you can see over here one of the branch of the aorta which is called subclavian artery is connected by the pulmonary artery is called Bella-lock tossing shunt. So Bella-lock tossing shunt, we have two types of Bella-lock tossing shunt. One is modified Bella-lock tossing shunt. So what is the difference between them, the older version and the modified? Yes, Dr. In a normal blood tossing shunt, we usually connect subclavian artery to right pulmonary artery. In a modified shunt, we made a connection with main pulmonary artery. नहीं, कनेक्शन सेम है, कनेक्शन आपका ब्रांच के साथ है, बट एक कनेक्शन होता है कि आपने दोनों को पकड़ के एनास्टेमोस कर दिया और एक है कि आपने बीच में कोई जो है ना वो लेट मी शो यू जस्ट अ सेकंड, आपने इन दोनों के दरमियान आइदर कोई कनेक्शन बना दिया, इस तरह बीच में कोई टिश्यू लगा के कनेक्ट कर दिया, दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइड. ठीक है, और दूसरा कौन सा वे है, दूसरा है कि आप डायरेक्ट इसको आपस में री एनास्टेमोस कर दो, दोनों को कंबाइन करके स्टिच कर दो, एनास्टेमोस कर दो. तो जब आप दोनों को कंबाइन करके एनास्टेमोस करते हो तो उसमें आपकी राइट साइड की जो पल्सेस है ना, ब्रेकियल पल्सेस, वो फिर एब्सेंट हो जाती. ठीक है, मॉडिफाइड के अंदर ये चीज नहीं होती, वहां पे आपको राइट ब्रेकियल पल्स सबकी मिल रही होती है क्योंकि वो स्टंट डालते हैं. क्या करते हैं? स्टंट के जरिए इसको कनेक्ट करते हैं. ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन. तो उसमें ये पहले होता था, स्टंट नहीं डालते थे तो फिर आपके पास एब्सेंट पल्सेस हो जाती थी रेडियल वाली. Okay, so this is the connection. So आपने connect कर दिया. Second thing is the tricuspid atresia. So what is tricuspid? Just like mitral. So you can see in this picture that just like the mitral, the tricuspid valve is completely atretic. So no blood, tricuspid valve is not formed. So no blood is coming into the right side of your ventricle.
So right side ventricle completely contracted. So when the blood is not coming into the right ventricle, similarly no blood going into the pulmonary. So pulmonary part is also atretic. It's just the same like a HLH, hypoplastic left heart. So in hypoplastic left heart, the problem was at the level of the mitral valve, while in case of the tricuspid atresia, the same story is at the right side. So in tricuspid, only the left ventricle is affected. So it's a unicirculation. Left ventricle is affected, right being small and non-functional. Associated defects are there, like could be ASD, VSD, PDA are essential for survival. For survival, definitely they have multiple connections are there. Presentation is with cyanosis in the newborn period if they are only duct dependent. ठीक है ना? तो डक डिपेंडेंट अगर हैं तो फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम, तो डक डिपेंडेंट कौन से वाले होंगे? डेफिनेटली जिनमें पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो डिपेंड कर रही है सिर्फ और सिर्फ डक्ट के ऊपर. ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, जस्ट rub me this. So if you have other connections, like for example, you can see over here in this picture, there is a one connection, the ventricle is there, the VSD is there, for example. Yes, this VSD, you can see the VSD is there. So why this VSD? You can see the blood is entering into little quantity, entering into the ventricle. Then from ventricle enter into the pulmonary circulation. Okay? Even though the quantity is low, but yes, some quantity is going through it. But for example, if this connection is not there, if connection is not there, you just have a PDA. So for example, if I omit this connection, so only you can see now this tricuspid atresia is only dependent on the PDA. अब जो भी pulmonary में blood आएगा, जब बीच का connection हमने बिल्कुल खत्म कर दिया, तो कोई भी blood जो है already atresia था ना tricuspid पे. Let me draw this picture. See, ये आपका जो है वो right atrium है, यहाँ पे block है. ब्लॉक आपका यहाँ पे इस लेवल पे. वेंट्रिकल में ब्लड किस तरह है? वेंट्रिकल में ब्लड आएगा यहाँ, तो आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल के दरमियान डिफेक्ट होगा, आपके पास कोई VSD होना चाहिए. ठीक है, ठीक है, आपका ये है पिक्चर. ठीक है, अब आपका कनेक्शन जो है वो वेंट्रिकल में ब्लड लाने के लिए दो तरीके हैं. ठीक है, आप सॉरी राइट साइड पे पल्मोनरी तक पहुंचाने के लिए दो ही रास्ते हैं. या तो आपका बीच में यहाँ पे कोई कनेक्शन हो. ठीक है, जब यहाँ पे वेंट्रिकल में किसी भी तरीके से ब्लड आ जाएगा तो थोड़ा बहुत पल्मोनरीज में चला जाएगा. दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आपका एओर्टा जो है वो कनेक्ट हो जाए पल्मोनरी के साथ. ठीक है, सो अगर आपके पास यहाँ पे VSD नहीं होता तो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो टोटली डिपेंड करती है एओर्टा के ऊपर. यानी कि यहाँ पे जब कनेक्शन नहीं है तो कोई भी ब्लड वेंट्रिकल में नहीं आएगा, क्योंकि वेल्व एट्रेटिक है. जब वेंट्रिकल में नहीं आएगा तो पल्मोनरी में नहीं आएगा, तो पल्मोनरी में सिर्फ और सिर्फ एओर्टा के थ्रू आएगा. तो ये कहलाता है कि डक्ट डिपेंडेंट. तो कौन प्रेजेंट करेगा साइनोसिस इन द न्यूबॉर्न? इफ दे आर ओनली डिपेंड ऑन द डक्ट. अगर उनके पास अदर लेवल के ऊपर ASDs हैं, VSDs हैं, तो मे बी दे विल नॉट प्रेजेंट वेरी वेरी अर्ली. यस, दे विल प्रेजेंट विद द साइनोसिस, ऐसा नहीं है कि उनमें साइनोसिस होगा नहीं, बट न्यू बॉर्न पीरियड के आई एम टॉकिंग अबाउट, जो अर्ली प्रेजेंट करते हैं, जो डक्ट डिपेंडेंट है, वो सिर्फ वो हैं जो सिर्फ डक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्यूजन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अगेन जो भी साइनोटिक हार्ट डिजीजेस हैं, चाहे ट्राइकस्पिड एट्रीजिया है, चाहे पल्मोनरी एट्रीजिया, जो भी पल्मोनरी रिलेटेड है, उसमें आपके पास जो प्रोसीजर्स हैं वो यही है कि आप सबसे पहले अर्ली स्टेज पे BT शंट करते हैं, then you go for the Glenn shunt, and in the last you go for the Fontaine shunt. And the basic, इसमें आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? यूनिवेंट्रिकुलर सर्कुलेशन को अचीव कर रहे होते हैं. राइट कभी सारा का सारा लोड जो है वो आप लेफ्ट साइड के ऊपर ही डाल देते हैं. ठीक है, तो राइट साइड तो कुछ भी काम नहीं कर रहा होता. सो व्हाट इज द Glenn shunt? तो BT shunt तो हमने डिस्कस कर लिया है कि इट्स अ कनेक्शन बिटवीन द सबक्लेवियन आर्टरी एंड द राइट पल्मोनरी आर्टरी. इट नॉट फिक्स, इट कुड बी राइट, इट कुड बी लेफ्ट, ये आपकी चॉइस है, बस आप ब्रांच के साथ करते हैं. राइट पल्मोनरी, अगर राइट BT शंट है तो राइट पल्मोनरी आर्टरी के साथ अटैच है. लेफ्ट साइड पे BT शंट क्रिएट करेंगे तो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के साथ अटैच हो जाएगा. ठीक है, so it's just the branch of the pulmonary artery
Now we talk about what is Glenn shunt. So Glenn shunt, you can see the connection is superior vena cava. So you can see it connects superior vena cava to pulmonary arteries. तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट सुपीरियर जो भी बॉडी का अपर जो भी सारा का सारा ब्लड आ रहा था वो उसको उन्होंने राइट हार्ट पे कनेक्ट करने के बजाय वहां से ब्रेक करके डायरेक्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन में डाल दिया है। वजह इसकी क्या है? वजह इसकी यही है कि जाहिर सी बात है राइट एट्रियम में लाने का फायदा है जब वेंट्रिकल में जाना ही नहीं है ब्लड, तो उन्होंने डायरेक्ट कर दिया पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर। ठीक है, फिर व्हाट इज द फॉन्टेन शंट? फॉन्टेन शंट में क्या है कि पहले आपने सिर्फ सुपीरियर वेना केवा को कनेक्ट किया था, अब आप इंफीरियर वेना केवा को भी कनेक्ट कर दो। सो यू कैन सी ओवर हियर in this picture that not only the superior vena cava connected to the pulmonary artery, your inferior vena cava is also directly जो है वो आपकी pulmonary artery से connect है, and you made some holes. So you can see you can make some holes. Fenestration help with extra blood flow until the lung adjusted. Because आपका जो pulmonary का जो vasculature है वो ventricle की तरह strong नहीं होता है। ठीक है, तो एकदम जब आप इतना सारा ब्लड डाल देंगे पल्मोनरीज के ऊपर डायरेक्ट सुपीरियर से भी इंफीरियर से भी, लंग ओवरलोड में चले जाते हैं। ठीक है ना, तो इसी वजह से इन्होंने फेनिस्ट्रेशंस क्रिएट किए हैं कि कुछ ब्लड जो है वो एट्रिया की तरफ जाए, पल्मोनरी जो है एकदम से ओवरलोड ना हो जाए, इतनी कंजेस्टेड ना हो जाए, पल्मोनरी का वैस्कुलेचर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? फॉन्टेन शंट, ग्लैंड शंट, ये क्यों इसका सबसे इतना सारा जब ब्लड फ्लो आपके पास आएगा, जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं आपके मसल्स क्या होना शुरू हो जाते हैं? हाइपरट्रोफीड होना शुरू हो जाते हैं। तो सेम लाइक दिस, जब बहुत सारा ब्लड डायरेक्टली पल्मोनरी आर्टरीज में आता है तो पल्मोनरी का वैस्कुलेचर, स्मूथ मसल सेल्स भी जो है वो हाइपरट्रोफीड होते हैं और आप एट द एंड जो है वो क्या डेवलप कर लेते हैं? पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट जो है वो पहले तो पल्मोनरी इसमें जो है नहीं होती, लेकिन विद द टाइम पहले फ्लो से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, फ्लो एकदम इंक्रीज होता है तो आपको ओवरलोड के साइन मिलते हैं कि कंजेस्टेड लंग्स होंगे, लेकिन बाद में एट द एंड क्या होगा? जब आपकी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी, स्मूथ मसल्स इतने हाइपरट्रोफीड हो जाएंगे तो फिर ब्लड फ्लो ही लंग्स को नहीं जाएगा, तब आपके पास जो है वो कंजेस्टेड वाले साइन नहीं होंगे बल्कि ड्राई लंग्स वाले होंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है वो फॉन्टेन शंट हो गया। Okay, now we talk about, so we talk about the duct dependent lesions. Now, what are the side effects of the prostaglandin? This is a very important side effects. We all know what prostaglandin we use. We have two types of prostaglandin, E1 and the E2. We are use these two to maintain the duct patency. They are basically the vasodilators. The side effect, which is very, very important, is that it causes apnea and hypotension. तो ये बहुत कॉमन है कि अगर एपनिया होगा और हाइपोटेंशन होगा तो आप क्या करेंगे? विल यू स्टॉप द प्रोस्टाग्लैंडिन? द आंसर वुड बी नो। नो, व्हाई? You have a ventilator to establish the breathing. Okay, so the most common side effect is the hypotension, bradycardia, and apnea. Okay, so apnea more likely to occur if the infant is less than 2 kg, and in that situation you will not going to decrease the dose or stop the dose, you will just simply go to the artificial ventilation, put the child on the ventilator. Now the next scenario is the breathless baby. Yes, who will read this scenario quickly? I'm reading. Okay, please. Tom is a 2-month-old baby boy who is brought to the children's emergency department by his parents with a history of poor feeding and shortness of breath for the past 2 days. He was born at full term by normal delivery, weighing 3.7 kg, 75th centile. He was discharged home at 4 hours of age at parental request. He remained well, but at his routine 6-week review, his GP noted that his weight of 4 kg was now on the 25th centile and he has a cardiac murmur. His GP referred him to the pediatric outpatient clinic, which is scheduled for 1 month's time. On examination, he is being saturating 95% in air with a respiratory rate 70 per minute, heart rate 150 per minute, and temperature 37 Celsius. Capillary fill 2 seconds centrally and peripherally. He has a depressed nasal bridge, upward slanting palpebral fissures, and bilateral semian creases. He is hypertonic with normal deep tendon reflexes. He has chest recession with clear lung fields on auscultation. His heart sounds normal with a grade 3/6 pansystolic murmur audible loudest over the lower left sternal border that conducts all over the chest. His abdomen is soft
with a palpable liver of 4 centimeter. अली मुझे आप एक बात का जवाब दो, ये सिनेरियो आपने पढ़ा, ठीक है, उन्होंने जी बताया कि ये बच्चा जो है बिल्कुल ठीक था, इनिशियली उन्हें पिक नहीं हुआ, 6 वीक्स के ऊपर जाके मरमर पिक हुआ, बिल्कुल न्यूनेटल एग्जामिनेशन पे मरमर पिक नहीं हुआ, ठीक है। जी अब ये वो वाला केस है जो हमने क्या पढ़ी थी, 5 तरह की टाइप्स पढ़ी थी कि कार्डियक डिजीज प्रेजेंट करती है। एक हमने उसमें से पढ़ी थी कि मरमर, ठीक है, आपने डिटेक्ट किया मरमर और उसकी वजह से वो जो है वो आपने पिक की अंडरलाइन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, तो ये वन ऑफ द एग्जांपल इज दिस। तो व्हाट इज दिस, आप क्या समझते हो, क्या डायग्नोसिस है इसका? डाउन सिंड्रोम विद एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट। अच्छा, डाउन सिंड्रोम, देखो अंडरलाइन एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट मोर कॉमन इन द डाउन सिंड्रोम, यस इट कुड बी, यू आर राइट, ओके, सही है। तो आप अगर हम इसको सिंपल कर लें, ठीक है, चूंकि हमें यहाँ पे अभी इतना एवीएसडी को लेबल करने के लिए हमें इको चाहिए, ठीक है, बट जी यू आर सही है। राइट, चाहे एवीएसडी हो चाहे आपका जो है वो वीएसडी हो, ठीक है, मरमर आपको सेम ही टाइप का मिलता है। तो ये मरमर जो है लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर 3/6 पैन सिस्टोलिक, ये कौन सा मरमर है? ये इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर है। नहीं, इन्होंने आपको बताया हुआ पैन सिस्टोलिक, देखो इन्होंने आपको अच्छा, इंजेक्शन का बता दिया। पेन सिस्टोलिक, जी जी। हाँ, तो ये कौन सा मरमर है? यस, सिंपल केस है फिर ये। हाँ, मतलब कौन सा मरमर है? मतलब ये कौन सी हार्ट डिजीज है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, आप क्या लग रही है आपको? वीएसजी। वीएसडी, वेरी गुड। तो वीएसडी, अब आपको ये सवाल उठेगा कि वीएसडी इसका स्मॉल है कि लार्ज है, ये बताओ। हाँ, इस लार्ज वीएसडी है, इसलिए मरमर का ग्रेड कम मिल रहा है, आपने इसको पिक, इनिशियली इसलिए पिक नहीं हुआ। हाँ अर्ली, इसीलिए वो पिक नहीं हुआ। अर्ली नॉर्मली जल्दी स्मॉल भी नहीं होता और लार्ज भी नहीं होता, इसका रीजन अब अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ वी गोस टू द क्वेश्चन। तो ये आपको ये बात क्लियर समझ आ गई कि अंडरलाइंग डाउन सिंड्रोम था, मरमर पिक हुआ है, और मरमर की इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक आपको बताई है पैन सिस्टोलिक है, जो कि मोस्ट लाइकली वीएसडी का मरमर है, ठीक है। आप एग्जाम, अब उन्होंने क्या, व्हाट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन टू नाउ परफॉर्म, single most important examination to now perform? Yes. Single most examination to now perform. क्या बताई थी मैंने, दो कॉमन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम मिस करते हैं, और वो अगर आपने मिस करोगे तो आप, Femoral pulses, हाँ, femoral pulses and blood pressure, these are the blood two pressure. most important कि वो आपसे सुनना चाहते हैं कि आप कार्डियक एग्जामिनेशन के अंदर इसको मिस नहीं कर रहे, ठीक है, इनका मकसद ये। एसएच फिमोरल पल्सेस की इसके साथ अभी कोई रिलेशन नहीं है, बट वैसे ही नॉर्मली पूछ रहे हैं कि आपने कौन सी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन जो आपने करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which would be the most likely diagnosis? So already you have told me this is large ventricular septal defect, okay. The third question is, which one of the following specialist do you refer this child to next? आपने पूरा केस पढ़ा, अब आप इसको कहाँ रेफर करेंगे? पहले B, B, बी, B, card. वेरी गुड, कार्डियोलॉजिस्ट टू मैनेज मेडिकली। व्हाई? ऐसे तो सिक नहीं है कि इसे पीट आईसीयू में भेजें, और सर्जन डायरेक्टली नहीं करते, आपको पहले उसका फेलियर को मैनेज करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कार्डियोलॉजिस्ट के बाद नेक्स्ट किसके बाद भेजेंगे, तो डाइटिशियन टू ऑप्टिमाइज न्यूट्रिशन, एंड देन फिर आप सर्जरी। तो ये सर्जरी और डाइटिशियन जो है ये आपके क्लोज है, लेकिन ये सब आपकी मैनेजमेंट में आएंगे। इवन जेनेटिक्स भी आपकी मैनेजमेंट में आएंगे। व्हेनेवर यू हैव अ सिंड्रोमिक बेबीज, आपको जब भी उसमें मैनेजमेंट प्लान करना होता है, दिस इज फॉर क्लिनिकल्स, तो जब आपको टीम बनानी होती है उसमें, वहां पे आपको जो भी रेलिवेंट उससे रिलेटेड जो सिंड्रोमिक बच्चे हैं उनको जेनेटिक्स को जरूर जो है ना आपने रेफर करना होता है, ठीक है। तो ये सभी टीम का पार्ट है, लेकिन इस वक्त चूंकि बच्चा फेलियर के अंदर है, इसका लिवर बढ़ा हुआ है, तो आपने उसको जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट टू मैनेज मेडिकली, तो अर्जेंट इसकी जरूरत है, ठीक है। So congenital heart disease, now we talk about the majority, the VSD is a very, very important topic. So VSD, this is the majority of the heart defects are multifactorial. So we don't know the cause, it's a multifactorial. However, certain types of CHD are linked with genetic syndrome. So ये बहुत important है
कि कौन से इंपॉर्टेंट जेनेटिक सिंड्रोम्स के साथ कौन से हार्ट डिजीजेस लिंक्ड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी मेडिकेशंस के साथ कौन से इंपॉर्टेंट CHD लिंक है, एंड डायबिटीज के साथ क्या लिंक है। The important thing is that if one sibling has a congenital heart disease, it doubles the risk for subsequent children, and the risk is even more higher if the either parent has congenital heart disease. ठीक है, तो ये आपको काउंसलिंग का पार्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लिनिकल्स। तब आपको काउंसलिंग करनी होती, क्या मेरे नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी चांसेस है, तो यस देयर इज अ चांस, इंक्रीज चांस कंपेयर टू द पॉपुलेशन, yes, double the risk of subsequent children may have congenital heart disease, and normally if the parents has a heart disease, the risk is higher still if either parents has congenital heart disease. Okay, this is a very important chart again taken from your SOP book, and it tell you which type are more important. So you can see the rubella infection is associated with more common peripheral pulmonary stenosis and PDA. So you should remember this chart, the most important one. SLE is associated with congenital heart block. Diabetes mellitus is associated with left flow outflow obstruction, LVOT और HOCM. इसमें जो important है वो आपको ये याद रखना है, LVOT obstruction और HOCM. Warfarin therapy are associated with warfarin, that it is not that much important, but you just read it. It is also associated with pulmonary valve stenosis. Fetal alcohol is a very important condition, so you should know it is associated with different type ASD, VSD. Top down, we already know that atrioventricular septal defect and VSD is common. Turner, we all know that Turner is associated with left heart problem, left-sided. While in contrast to the Turner, we have another condition. The name is coming out, taken out from my mind. टर्नर के साथ एक और कौन सी कंडीशन होती है जो सेम, नूनान, ठीक है, नूनान. So Turner is present in the girls, Noonan syndrome is present in the boys. Noonan is associated with right-sided heart problem, while Turner is associated with left side. Should remember, जो रेड से मार्क हुए हैं वो तो बिल्कुल पक्के, उसमें आपने कोई मिस नहीं करना. अभी मैंने आपको W22q11 डिलीशन, जिसे डाइजॉर्ट सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है. डाइजॉर्ट सिंड्रोम में अभी बताया था कि एओर्टिक आर्च एनोमलीज, टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट, कॉमन आर्टीरियल ट्रंक, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें ट्रंकल रिलेटेड, कोनो ट्रंकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर वेरी कॉमन. विलियम सिंड्रोम, so you can see the विलियम सिंड्रोम में जो एसोसिएटेड कंडीशन है वो सुप्रावैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस एंड पेरिफेरल पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस. Noonan, I already told you, Noonan is associated with the pulmonary valve right side. तो जो मार्क किए हुए रेड के साथ, और जो डायबिटीज मेलाइटिस का है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वन थिंग विच इज नॉट इन दिस चार्ट, which you should know, is that lithium is associated with which disease, which type, एब्स्टीन एनोमली, ठीक है. तो ये भी याद रखना है, lithium is associated with Epstein anomaly. Please remember it. Okay, so these are the important ones which you should know, which you should remember it, because ये questions रट्टाफाए और ये बिल्कुल easy होते हैं, फिर ये हम मिस नहीं कर सकते इतनी रट्टाफाए और इतनी सिंपल चीजों को, ठीक है. Okay, so this is the same. We have already discussed the shock, how the heart disease is present. Now the second which we are discussing now is the heart failure. The another congenital heart disease, not only presented with the murmur, but also presented with the signs of the heart failure. This is the second category of the congenital heart disease presentation. What's important in it? Okay. Now, before going into that, first of all, we will discuss now little bit basics. Okay, this basic is also very important. How these murmur formed, how these detect. So this is the basic part. So we'll review it. Cardiac auscultation, an important part of the cardiovascular examination, and pediatrician should listen it carefully. The first heart sound, we should know that it is formed or it is caused by closure of the atrioventricular valves. It is formed by the
closure of the atrioventricular valve produce the first heart sound and best listen over the apex. The second heart sound, it is caused by the closure of the aortic and the pulmonary valve, and it is best heard at the sides of the upper sternal edge. So aortic जो है वो आपको right side पे अच्छा सुनाई देगा, और जो pulmonary component है सेकेंड हार्ट साउंड का, वो आपको लेफ्ट अपर स्टर्नल पे अच्छा सुनाई देगा, जहां पे हम एओर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर, इफ यू सी द चेस्ट, दिस इज योर निप्पल एरिया, ओके। तो एपेक्स आपकी निप्पल के अराउंड ही होती है, तो यहाँ पे आपको S1 सुनाई देगा, और जो ऊपर जो सेकेंड इंटरकॉस्टल रिब्स है, तो राइट साइड पे आपको एओर्टिक कंपोनेंट सुनाई देता है, और लेफ्ट साइड पे आपको पल्मोनरी कंपोनेंट बेस्ट सुनाई देता है. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पल्मोनरी हाइपरटेंशन स्पेशली, तो उसमें आपको लाउड P2 मिलता है एट दिस लेवल. सॉरी. ठीक है, so these are the murmur, these are the normal heart sounds. Okay, now we're talking about the splitting. Now we discussed, we all know that about the splitting, but we take a brief review about the splitting. Splitting of the second heart sound. Dr. Aleem, is this a normal phenomena or abnormal phenomena? Is this a normal thing or not? Splitting. Splitting abnormal phenomenon. No, splitting is normal phenomena. स्प्लिटिंग वेरी करनी चाहिए विद रिस्पिरेशन. स्प्लिटिंग नॉर्मल है, पहली चीज क्लियर होनी चाहिए, बट ये रिस्पिरेशन के साथ इसका लिंक है. क्या रिस्पिरेशन के साथ लिंक है? जस्ट रीड इट. Breathing will influence the closure of the pulmonary and aortic valve. So breathing will influence the closure of the pulmonary and aortic valve, and therefore usually change the character of the second heart sound. So because of the breathing, because of the inspiration, expiration, the character of the second heart sound change. See, during the inspiration, when you inspire, the intrathoracic pressure decreases, leading to increased venous return to the right side of the heart. Agree with this point? When you're going to inspire, the next picture will be clear, will clear this point. The blood tend to stay in the lungs because the vacuum surrounded by the lung, which causes reduced फिलिंग ऑफ द लेफ्ट साइड. तो बॉडी में राइट साइड पे स्टक होगा ब्लड, सारा वीनस ब्लड. जब नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा तो वो राइट साइड पे ब्लड आएगा, लेकिन लेफ्ट साइड से ब्लड निकल के हार्ट से, सॉरी लंग से, लेफ्ट नहीं, बेसिकली लंग से निकल के लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे ब्लड इतना ज्यादा नहीं आएगा. आएगा तो सही, लेकिन कंपैरेटिवली कम आएगा. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जब आप इंस्पायर करते हो. तो इंस्पिरेशन में आपको स्प्लिटिंग मिलती है. ठीक है, तो वी सी ओवर हियर, this is the picture. You can see over here when you are inspiring, see this is the lungs are going outward, you are inspired. तो आपका इंट्राथोरेसिक प्रेशर जैसे ही कम हुआ अंदर, फौरन से जो आपका वीनस रिटर्न है ये इंक्रीज हुआ. सो यू कैन सी द राइट साइडेड ब्लड इंक्रीज हुआ है. ठीक है, जबकि लेफ्ट साइड से जो ब्लड है, जो लेफ्ट साइड का जो ब्लड है जो लंग से आना है, बिकॉज ऑफ द वैक्यूम क्रिएटेड अराउंड इट, तो आपका फ्लो विल गोइंग टू डिक्रीज. सो इंस्पिरेशन में आपका ब्लड का जो फ्लो है वो डिफरेंस है राइट और लेफ्ट का. So what happened when you have a more blood, when you have a more blood in the right side, it will take more time to out from the pulmonary. ठीक है, आपका pulmonary से पूरा blood निकलने में time लगेगा because you have more blood at the right side. So what happened? The aortic valve close early, pulmonary valve close later. ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है. This is here the application of the Frank-Starling law. What is the Frank-Starling law? When there is a stretch क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने बहुत ज्यादा ब्लड आएगा तो स्ट्रेच होगा. बलून में भी जब एयर ज्यादा आती है तो बलून स्ट्रेच होता है. So when there is an increased amount of blood, it will cause stretch, which is directly proportional to the strength of the contraction. तो जितना स्ट्रेच ज्यादा होगा उतनी ही देर तक उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, कॉन्ट्रैक्शन की ज्यादा होगी. तो एट द राइट साइड यू हैव इंक्रीज ब्लड, इट विल कॉज इंक्रीज स्ट्रेच,
that cause stronger contraction, so more positive pressure sustained in the ventricle, and it will take longer for the valve to close. तो ये आपका basic underlying pathophysiology है. वाइट स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, ठीक है. तो राइट साइड पे ब्लड ज्यादा आने की वजह से डिले हो जाता है आपका पल्मोनरी वाल्व का क्लोजर. जब डिले होता है तो यू कैन सी ओवर हियर in the next picture that what happened normally. So you can see the S1 sound same, the character is same. It does not matter with inspiration or expiration. But what happened when an inspiration occur, you can see over here at the inspiration, the aortic valve closes early and pulmonary close delay of the pulmonary closure. So there is a lag, there is a splitting, there is a time difference between them. So this A2, P2, there is a splitting at the level of inspiration, while at the time of expiration, the flow is normal. So what happened? A2, P2 come early. There is no splitting over here. So splitting is a normal phenomena if it is related to inspiration only. But if splitting occur in both phases, means this splitting is present in the inspiration and same is present in the expiration, then we called it as a wide fixed splitting. What we use the word fixed splitting. Fixed splitting is abnormal. Okay, Dr. Ali, fixed जी जी. splitting is abnormal and that is characteristic to the only one lesion, that is ASD. Okay, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि splitting. So ये हमने ऊपर देख लिया है कि if delay the closure of the pulmonary valve relative to the aorta, this result in the wider splitting of the second heart sound. So wide fixed splitting we have already discussed in children with atrial septal defect. अब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में प्रॉब्लम क्या होता है आपका कि जो ब्लड होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में वो कहां से कहां मूव करता है. इफ वी मेक द पिक्चर, दिस इज द एट्रिया, दिस इज द वेंट्रिकल, दिस इज द एट्रिया, दिस इज द वेंट. आपका कनेक्शन यहाँ पर है, ठीक है. तो चाहे इंस्पिरेशन जो है वो इंस्पिरेशन हो या एक्सपिरेशन हो, दोनों फेजेस के अंदर ब्लड ऑलवेज मूव होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट. तो राइट साइड का ब्लड फ्लो ऑलरेडी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, कांस्टेंट है. इंस्पिरेशन पे भी ये शंट की वजह से राइट साइड पे ब्लड आ रहा है, एक्सपिरेशन में भी शंट की वजह से राइट साइड में ज्यादा ब्लड आ रहा है. तो इन दोनों ही फेजेस के अंदर आपके पास राइट साइडेड ब्लड ज्यादा है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द शंट एट द एट्रियल लेवल दैट कॉजेस फिक्स्ड splitting of the second heart sound. Okay, so in atrial septal defect, flow of the blood from left to right across the defected septum leading to continuous increase in the right atrial filling. Therefore, there is a wide and fixed splitting of the second heart sound, which is independent of the inspiration. Second heart sound का character अगर loud हो जाए, it means it is pulmonary hypertension. We always think अगर आपको लाउड सुनाई दे रहा है सेकेंड हार्ट साउंड, इट मींस के पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज प्रेजेंट. ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द मर्मर. अब हम मर्मर्स को डिस्कस कर रहे हैं. हमने नॉर्मल हार्ट साउंड्स पढ़ लिए, अब समझ आ गया. अब मर्मर हम कैटेगराइज करते हैं. वी हैव थ्री कैटेगराइजेशन, सिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक एंड कंटिन्यूअस. So if we see over here, the systolic murmur, systolic categorized into two types. Okay, आपने ejection बोला था ना, yes, ejection type is also there, ejection systolic and the pansystolic murmur. Okay, अभी हम पढ़ते हैं कि ejection systolic किस डिजीज में मिलते हैं, pansystolic हमें किस में मिलते हैं, वो हम आपको बताते हैं. अच्छा, पहले हम ये मर्मर को समझने से पहले कि ये ejection systolic क्यों है, ये जो है वो pansystolic क्यों है, ये diastolic क्यों है, उसके लिए हमें जो है वो कार्डियक साइकिल को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा. दिस इज ऑल प्रेजेंट इन योर एफओपी बुक. ये बेसिक सारा आपको इसीलिए बताया जा रहा है, ठीक है. टू अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड द हार्ट मर्मर, के हार्ट मर्मर क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये कैसे कैटेगराइज्ड हुए, यू हैव टू रिमेंबर और यू हैव टू रिवाइज कार्डियक साइकिल. So cardiac cycle is categorized into three phases. The first is the ventricular contraction, second is the ventricular relaxation, and third is the ventricular filling. So these are the three
तो अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एट्रिया के लेवल से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू कैन सी दिस पिक्चर, अगर आप ये पिक्चर को देखें, सबसे पहले आपको एट्रियल की जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो आप ये देख रहे हैं कि ये एट्रियल प्रेशर जो है वो बेस लाइन से राइज हुआ है, ठीक है। एट्रियल प्रेशर इंक्रीज हुआ है, ये आपकी कार्डियक साइकिल जनरेट हुई। जब एट्रियल प्रेशर इंक्रीज होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो जब आप ईसीजी अटैच करेंगे तो यू विल गेट द पी वेव, ओके। एंड व्हाट हैपेंड, जब एट्रिया से ब्लड निकल के, जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी, ब्लड निकल के वेंट्रिकल में आएगा, तो यू कैन सी ऑलरेडी वेंट्रिकल का वॉल्यूम 90 था और वो फर्दर इंक्रीज हो गया थोड़ा सा आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, तो इट इज अराउंड 120 या 110 के अराउंड। तो यू कैन सी कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन प्ले अ वेरी लिटिल रोल इन द वेंट्रिकुलर फिलिंग। वेंट्रिकुलर फिलिंग ऑलरेडी 90 पे पहले से ही हुई हुई थी, आपकी कॉन्ट्रैक्शन के बाद थोड़ा सा वॉल्यूम इसमें जस्ट ऐड ऑन हुआ। सो यू कैन सी increased ventricular volume on ECG, you can see the P wave and arterial pressure will slightly raised, okay. Then what happened, ये clear हो गया ना? You can read this contacts later, I'll share this PDF with all you people, you can read this later on, okay. So अभी हम इसका main concept समझ लेते हैं, okay. Then what happened, the second stage is, अब वो बिल्कुल ventricle में filling हो चुकी थी, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट फेज आया है वेंट्रिकुलर सिस्टली। वेंट्रिकुलर सिस्टली क्या है? वेंट्रिकुलर सिस्टली इज बेसिकली वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। So you can see at this level, first of all, if you see the pressure, so the first thing, when the ventricle started to contract, the pressure in the ventricle rises, you can see peak हुई है। ventricle की जो pressure है, आर्टीरियल प्रेशर थोड़े से राइज होते हैं, लेकिन वेंट्रिकुलर प्रेशर सडनली राइज हुए हैं, 100 के अराउंड प्रेशर पहुंच गए, ठीक है। एट दिस स्टेज पे अगर आप वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम सस्टेन है, ठीक है। वॉल्यूम सस्टेन है, अंदर जितना ब्लड था उतना ही है, अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, प्रेशर जनरेट हो रहा है, सिर्फ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और उस टाइम पे आपको क्या चीज मिल रही है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज होगी, क्या होगी कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो आपका इस लेवल पे एवी वाल्व क्लोज्ड हो, ठीक है ना, क्योंकि एट्रिया से ब्लड आ गया है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब वेंट्रिकल का मकसद ब्लड दोबारा एट्रिया में नहीं लेके जाना, तो वो इसको क्या करेंगे, इस लेवल को यहाँ पे इसी वेंट्रिकुलर सिस्टोल के फेज में आपकी एवी वाल्व क्लोज्ड होगी, फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कि इसको क्या कहते हैं, एक वर्ड होता है आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज आइसो वॉल्यूमेट्रिक? अगर आप यहाँ पे देखें, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, प्रेशर बहुत इंक्रीज हुआ है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द लंग्स रिमेन सेम, वॉल्यूम ना कम हुआ है ना ज्यादा हुआ है, इट्स स्टैटिक। दिस टर्म, ये इनिशियल जो फेज होता है सिस्टली का, उसे हम क्या बोलते हैं? आइसो वॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। वॉल्यूम रिमेन सेम, जस्ट दे आर बिल्डिंग और जनरेटिंग प्रेशर्स, ओके। अब ये आइसो वॉल्यूमिक को भी बताते हैं, ओके। Yes, so this is isovolumetric contraction. So what I told already, I explained you कि early contraction phase के अंदर, this is the early contraction phase, जिसमें left ventricle pressure only increases, exceeds the pressure in the atria. Atria के pressure से exceed हुआ है, AV valve closed हुआ है, produce किया है first heart sound, and volume is fixed, contraction is there. This is called isovolumic contraction. Isovolumic stage only lasts for a short period of time. Then we have first heart sound. You can see in this chart. अब ये चार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इसे सिंपल करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हम देख चुके, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। अब सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है, जस्ट अ सेकंड। अब यहाँ पे क्या हुआ है देखें, अब आपका यहाँ पे प्रेशर ऊपर, ये वाला ब्लू लाइन जो है, इफ यू कैन सी दिस ब्लू लाइन, ये आपके वेंट्रिकुलर प्रेशर्स थे, ठीक है। अब वेंट्रिकुलर प्रेशर इतने एक्सीड हो गए
ये जो ब्लैक में आ रहे हैं ये आपके एओर्टा के प्रेशर है, ठीक है। इसने एओर्टिक वाल्व के प्रेशर को एक्सीड किया, ठीक है, तब जाके एओर्टिक वाल्व ओपन हुई। जैसे एओर्टिक वाल्व ओपन हुई आपने नीचे फॉलो किया कि आपका लंग वॉल्यूम एकदम से, जो वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हुआ, ब्लड वेंट्रिकल से निकल गया, ठीक है, ब्लड वेंट्रिकल से निकल चुका है और आपके पास जो है अब वेंट्रिकल से ब्लड रिलैक्स है, तो आपके पास इस स्टेज के ऊपर टी वेव जो है वो आना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। एंड पहले फेज में ही आपको ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जहाँ आइसो वॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, जहाँ पे क्यूआरएस जनरेट हुआ था, उसके साथ ही आपको ये फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई दिया था, ठीक है। तो ये आपको जो है वो फर्स्ट हार्ट साउंड के बारे में बताया है, ठीक है। अब हम आगे इसको फर्दर वो करते हैं, बिल्ड करते हैं इस कार्डियक साइकिल को, फिर मरमर भी डिस्कस करेंगे कि मरमर किस लेवल पे कहाँ पे होते हैं। आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन के बाद सेकंड फेज होता है इजेक्शन फेज, ब्लड को इजेक्ट करना है। तो इजेक्शन जब ही होगा जब वो एओर्टिक प्रेशर से एक्सीड करेगा। तो यू कैन सी कि एओर्टिक प्रेशर 80 पे था और वो उससे राइज कर रहे हैं, तो द प्रेशर कंटिन्यू टू इंक्रीज अंटिल इट एक्सीड्स 80, ठीक है, एंड दैट विल कॉज एओर्टिक वाल्व टू ओपन एंड आपका फिर वॉल्यूम जो है फॉरन गोज डाउन होगा, ठीक है। तो यू कैन सी इन द कमिंग फेज जैसे ही इजेक्शन स्टेज आई, यहाँ पे आपने देखा कि वॉल्यूम जो है वो रेड से शो हो रहा है और वो वॉल्यूम आपका सडनली यहाँ पे जाके देखें, ये देखिए वॉल्यूम आपका डिक्रीज हुआ है, ब्लड आपकी वेंट्रिकल से निकल के आउट हो चुका है, ठीक है। आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन हो गई, इजेक्शन फेज हो गया। नाउ वी हैव द थर्ड फेज इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, वॉल्यूम रिमेन सेम, ठीक है। अब आप देखें इस वाले फेज में क्या हो रहा है, आपके पास इजेक्शन फेज के बाद यू एंटर इनटू द आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर एक्चुअली कम हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज हुई है, अगर आपने यहाँ नोटिस किया, वेंट्रिकुलर प्रेशर नीचे आ रहे हैं, ठीक है, वेंट्रिकुलर प्रेशर ड्रॉप हुए हैं, सिर्फ टी वेव आपकी अपियर हुई है, ठीक है, और आपका जो है वो रिलैक्सेशन। दूसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होगी, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर रिलैक्स होंगे तो अब क्या होगा आपका, यहाँ रिलैक्स होने के साथ एओर्टिक वाल्व का क्लोजर आएगा, ठीक है ना, एओर्टिक वाल्व दोबारा से बंद होंगे, ठीक है। तो यू कैन सी वी गेट आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन, valves are closed, ventricles are relaxing। कौन से valves क्लोज हो गए, एओर्टिक एंड पल्मोनरी valve, दोनों के दोनों वो valve कब क्लोज होंगे, जैसे ही प्रेशर वेंट्रिकल का ड्रॉप होगा, ठीक है, एंड प्रेशर इन द वेंट्रिकल ड्रॉप सिग्निफिकेंटली बट वॉल्यूम रिमेन सेम, ये वॉल्यूम आपका सेम, ठीक है, एंड दैट विल प्रोड्यूस द सेकेंड हार्ट साउंड। यू कैन सी द सेकेंड हार्ट साउंड आपकी इसी फेज पे कोइंसाइड कर रहा है, येलो वाला जो आपका आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन फेज है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, आपका फिलिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने तीन चीजें पढ़ ली, कॉन्ट्रैक्शन फेज पढ़ा, रिलैक्सेशन फेज पढ़ा वेंट्रिकल का, अब फिलिंग। तो व्हाट आई टोल्ड यू कि 90% जो आपकी वेंट्रिकल की फिलिंग होती है वो कौन सी फिलिंग होती है, पैसिव फिलिंग होती है, जो कि एट्रिया पे डिपेंड नहीं कर रही होती है, ठीक है ना। उसके लिए आपके पास एक ठीक है। तो इस फेज में आपके पास अब क्या हुआ है, सिंपली कि यहाँ पे पैसिव फिलिंग फेज हो रहा है, लेट मी रब दिस ताकि ये थोड़ा सा ठीक है। इसमें क्या चीज नजर आ रही है, आपको क्या नजर आया कि फिलिंग स्टार्ट हो रही, तो फिलिंग कहाँ पे अपेयर हो रही है, पैसिव फिलिंग, फिलिंग में वेंट्रिकुलर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो वेंट्रिकुलर वॉल्यूम इंक्रीज इसमें शो नहीं हो रहा, लेट मी शो यू द अनदर पिक्चर। या फिलिंग फेज पे प्रेशर है, जस्ट अ सेकंड, अच्छा यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअली आपका ये जो रेड वाली लाइन है, ये जो रेड वाली लाइन है जो ड्रॉप हुई है, अब ये दोबारा से फिल होना शुरू हो जाएगी, आपकी सारा प्रेशर ड्रॉप हो गया, प्रेशर इतना ड्रॉप हो गया कि आपकी देखिए एट्रिया को भी क्रॉस कर गया, एट्रियल प्रेशर से भी नीचे चली गई ये ब्लू वाली लाइन। जब एट्रियल प्रेशर से नीचे चले जाएगा वेंट्रिकल का प्रेशर, तो आपकी कौन सी वैल्व्स ओपन होंगी,
एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व ओपन होंगी और आपकी पैसिव फिलिंग विल गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज ओनली. So once the ventricular pressure gets below the atrial pressure, valve going to be open, blood coming back from the body, start passive filling the ventricle, continue up to the point where we get into the next P wave, which is atrial contraction. ठीक है. अब हार्ट साउंड्स, अब हम हार्ट साउंड्स की बात करते हैं. थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड्स की हमने बात नहीं की थी कि वो कब प्रोड्यूस होती. तो थर्ड हार्ट साउंड हमारी प्रोड्यूस होती है एट द टाइम रैपिड पैसिव फिलिंग. तो थर्ड हार्ट साउंड कौन प्रोड्यूस करता है आपकी? सी द वर्ड ओवर हियर, रैपिड पैसिव फिलिंग ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल. तो थर्ड हार्ट साउंड आपकी प्रोड्यूस होती है पैसिव फिलिंग के बाद. पैसिव फिलिंग कब आपकी हो रही होती है? एट द टाइम ऑफ डायसिस्टोल. सिस्टोली में तो फिलिंग नहीं हो रही होती ना, डायसिस्टोली में हो रही होती ना. तो सी इट प्रोड्यूस जस्ट आफ्टर, इधर वर्ड इंपॉर्टेंट है जस्ट आफ्टर. सी ये जस्ट आफ्टर, जैसे ही आप रिलैक्स हुए, आपका एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व ओपन हुई, रैपिड फिलिंग जो है वो स्टार्ट हुई है जस्ट आफ्टर द सेकेंड हार्ट साउंड डायसिस्टोल. It can be normal in children. It can be normal, but it abnormal as well. ये आपकी थर्ड हार्ट साउंड पता चल गई किस फेज में प्रोड्यूस हो रही है. इट इज कॉज्ड बाय द रैपिड पैसिव फिलिंग. Third heart sound or gallop rhythm is often a sign of heart failure. It is produced by the rapid left ventricular filling. So you can see in the picture कि आपकी ये passive filling की ये बात कर रहे हैं इसके अंदर. You can see over here ये आपकी passive filling जो है, यहाँ पे passive filling increase हो गई है. And it could be a normal sign in a thin lean children, but it can cause it could be due to the failure as well. नेक्स्ट व्हाट अबाउट द फोर्थ हार्ट साउंड? फोर्थ हार्ट साउंड कहाँ प्रोड्यूस हो रही? अगर आप यहाँ पे वर्ड देखो, इट इज लेट इन द डिस्टिल. इट इज प्रेजेंट लेट इन द डिस्टिल फेज. ठीक है, यू कैन सी इट इज लेट इन द डिस्टिली जस्ट बिफोर द सिस्टोल. तो जस्ट बिफोर द सिस्टोल क्या होता है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती. तो यू कैन सी ये एट्रियल पंप की वजह से ये प्रोड्यूस होती है. ठीक है, स्पेशली जब एट्रियल पंपिंग हो अगेंस्ट द स्टिफन वॉल्व, आपकी वेंट्रिकल की वॉल्व बहुत स्टिफ हो और जब एट्रियल पंप करेगा ब्लड, उस वक्त आपकी जब आवाज प्रोड्यूस होगी, दैट कॉज फोर्थ हार्ट साउंड. इट प्रोड्यूस जस्ट बिफोर द सिस्टोल. ठीक है, एट द टाइम ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. It produced when the ventricles are pretty stiff. The important word, ventricles are pretty stiff. So when the blood rushes it, it's bouncing against the stiffer wall and causes the fourth heart sound. कोई question है? जल्दी ले आते हैं. Now we have pansystolic murmur. अब हमारे पास मर्मर की टाइप्स है कि मर्मर क्यों प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और मर्मर किस कार्डियक साइकिल की किस फेज में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. So pansystolic murmurs are heard throughout the systole. So you can see holosystolic murmur, pansystolic, it's the same word. अब आप देखिए पूरी साइकिल के अंदर मौजूद. अच्छा, अब साइकिल के किस फेज पे ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप यहाँ पे नोटिस करें कि जो मर्मर है ये आपके इजेक्शन फेज में, इजेक्शन फेज में हो रहे हैं, एज वेल एज आइसोवॉल्यूमिक फेज, ड्यूरिंग विच बोथ atrioventricular valves and aortic pulmonary valves are closed. ये इंपॉर्टेंट है. तो दो फेजेस के अंदर आपके इजेक्शन फेज, एक तो इजेक्शन फेज है, ठीक है, उसमें ये मर्मर हर्ड होता है, और दूसरा ये मर्मर कब होता है? जब आपकी आइसोवॉल्यूमिक फेज होता है. चाहे वो आइसो, यहाँ पे बेसिकली आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन की बात करें क्योंकि ये सिस्टोलिक है. सिस्टोलिक मर्मर का रिलेशन है कॉन्ट्रैक्शन के साथ. तो आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या हो रहा होता है? इफ वी टॉक अबाउट द आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, उस टाइम पे हमारी एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज हो रही होगी. तो अगर वैल्वुलर कोई प्रॉब्लम है, चाहे एमआर हो, टीआर हो, एट्रियोवेंट्रिकुलर का प्रॉब्लम है, या फिर बीच में वेंट्रिकुलर पे सेप्टम पे कोई डिफेक्ट है, दैट विल गोइंग टू प्रोड्यूस पैनसिस्टोलिक मर्मर. ठीक है, तो कहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहा है आपका? बेसिकली आप इसको सिंपल वर्ड में याद करें, पैनसिस्टोलिक मर्मर को आइसोवॉल्यूमिक फेज में ये प्रोड्यूस हो रहा होता है. जब आपके अगर वाल्व सही तरह बंद नहीं होते हैं, उसमें लीक हो, या फिर सेप्टम के लेवल के ऊपर रशिंग हो रही हो, आपस में ब्लड मिक्स हो रहा हो,
that will throughout the systolic phase. ये फिर पूरे systolic phase में same amount में होगा. This is called pan systolic murmur. इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर आपका कब प्रोड्यूस हो रहा होता है? ठीक है, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर आपका प्रोड्यूस हो रहा होता है ड्यूरिंग इजेक्शन फेज. इजेक्शन, अब आपने क्या देखा, इजेक्शन का मतलब ही इजेक्शन के टाइम पे. सो इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर एट द टाइम ऑफ इजेक्शन. सो इजेक्शन के टाइम पे क्या होता है? इजेक्शन के टाइम पे आपकी एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व ओपन हो रही होती है, प्रेशर्स इतने हाई होते हैं. अगर आपकी वाल्व क्लोज्ड है और ओपन नहीं हो पा रही है, then you have a ejection systolic murmur. It due to the either stenosis of the aortic and pulmonary valve. तो सिस्टोलिक मर्मर को इन जनरल किस तरह से याद रखना है हमने? इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला. हम ये इसका निमोनिक बनाते हैं. एक बहुत अच्छा सा निमोनिक हमें पढ़ाया गया था, वो आपको बताते हैं कि अगर आपको सिस्टोलिक मर्मर्स याद करने हैं तो आपके सामने ये चेस्ट है, ठीक है, इसमें आपने एक लेवल बना देना एट द लेवल ऑफ निप्पल. निप्पल के लेवल पे आप अपनी लाइन खींच लें. निप्पल के लेवल से ऊपर जो भी मर्मर होते हैं उससे हम कहते हैं इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर. ठीक है, अगर आपको मर्मर अप्रिशिएट हो रहा है अबव द निप्पल तो उसको आप लेबल करें. भले आपको उस वक्त समझ ना आ रहा, बट आपने उसको लेबल करना है इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर. बिलो द निप्पल जो मर्मर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो होते हैं आपके पैन सिस्टोलिक मर्मर. ठीक है, ये आपके पीसीएम मींस पैन सिस्टोलिक मर्मर. अब आपके सिंपल अगर आप याद रखने, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर के अंदर आपके कौन से इंपॉर्टेंट मर्मर्स हैं जो हमने पढ़ा एट द टाइम ऑफ इजेक्शन. तो इजेक्शन से मिलाते दो वेल्व्स है, तो एओर्टिक वेल्व और पल्मोनरी वेल्व के मर्मर आपको इजेक्शन फेज में मिलेंगे. इसके अलावा एक और जो बहुत कॉमन मर्मर है जो इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर प्रोड्यूस होता है वो आपका एएसडी का मर्मर है. तो वो आपका क्यों प्रोड्यूस हो रहा होता है? वो भी आपका फ्लो मर्मर होता है. आपका पल्मोनरी में फ्लो इंक्रीज होता है, इसी वजह से वो मर्मर प्रोड्यूस होता है. So you have to remember these three murmur under a category of ejection systolic murmur. First, it present above the nipple line, and three things are there. It is related to the valve flow opening, aortic and pulmonary valve की opening का problem है, और it is due to ASD. Below the nipple अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारी जो फेज है वो आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन में हमें valve closure चाहिए. कौन सा वाला closure चाहिए? एओर्टिक वाल्व और वो सॉरी एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व का क्लोजर चाहिए. तो वो अगर प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होगा तो दैट विल गोइंग टू प्रोड्यूस पैन सिस्टोलिक मर्मर. तो वो उसमें आपके पास एमआर भी आ जाते हैं, टीआर भी आ जाते हैं. एमआर आपको एपेक्स में मिलता है, एपेक्स पे आपको एमआर का मर्मर मिलता है, जबकि टीआर और वीएसडी ये दोनों मर्मर आपको लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर, ये आपकी स्टर्नम होती है, यहाँ पे इस तरफ आपको बिलो द निप्पल आपको लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पैन सिस्टोलिक मर्मर बीएसडी एंड टीआर. टीआर नॉर्मली आपके राइट हार्ट प्रॉब्लम इतने कॉमन नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ आईवी ड्रग यूजर्स के अंदर कॉमन होते हैं. Otherwise, most of the time in your exam, if they are talking about left lower sternal border, go for the VSD. These murmur are very, very important. So many questions came related to it. So that is why it is very important to make it very clear, especially the systolic murmurs. Diastolic itne important nahi hai as compared to the systolic one. Is this clear to everyone? Should I repeat it? Clear. Very. तो ये आपने मर्मर के फेजेस, कार्डियक साइकिल के साथ रिलेशन आपने सिस्टोलिक पढ़ लिया. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द डायसिस्टोलिक मर्मर. के डायसिस्टोलिक मर्मर कब प्रोड्यूस हो रहे होते हैं? ठीक है, तो डायसिस्टोलिक मर्मर से पहले वी हैव अ कंटिन्यूअस मर्मर. तो कंटिन्यूअस मर्मर आर हर्ड थ्रू आउट बोथ सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक. इट बेसिकली टेल्स यू द कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो थ्रू द एओर्टोपल्मोनरी कनेक्शन. तो बेसिकली आपके पास ये थ्री डिफरेंशियल्स आते हैं, ये आपको कंटिन्यूअस एओर्टोपल्मोनरी कम्युनिकेशन बताते हैं. इसमें पीडीए है, एवी फिस्टुला है, एंड थर्ड इज द बीटी शंट. ठीक है, तो बीटी शंट में भी यू हैव अ कंटिन्यूअस मर्मर ओवर द बीटी शंट एरिया. वहां पे भी कनेक्शन हुआ है एओर्टा का पल्मोनरी से, सब क्लेवियन का पल्मोनरी से. सो इट्स बेसिकली कंटिन्यूअस मर्मर का कॉन्सेप्ट क्या है? इट्स अ कनेक्शन बिटवीन द आर्टरी एंड द पल्मोनरी.
Now we have a diastolic murmurs. What are the diastolic when they are produced? ये तो हमें क्लियर हो गई कि ये डायसिस्टोलिक मर्मर डायसिस्टोलिक फेज में होंगे, ठीक है, सिस्टोलिक फेज में नहीं होंगे, they will be in the diastolic phase, ठीक है. So diastolic murmurs are heard after the second heart sound, before the first. They are caused by either. अब diastolic phase में क्या हो रहा था, अगर हम खुद सोचें, रिलैक्सेशन के फेज में क्या चीज हो रही थी, रिलैक्सेशन जब हो रहा था, हम दिमाग में फिलिंग वाला फेज लेकर आए, डायसिस्टॉल वाला फेज लेके आए, तो उसमें सबसे पहली चीज क्या हो रही थी, एओर्टा और पल्मोनरी वाल्व क्लोज हो रही थी. सबको दिमाग में आता है. सिस्टोलिक के वक्त क्या हो रही थी, ओपन हो रही थी. डायसिस्टोलिक के वक्त क्या हो रही थी, दोनों क्लोज हो रही थी. तो क्लोज होने में कोई प्रॉब्लम है तो रीगर्जिटेशन, आइदर आपका एओटिक एआर हो या फिर आपका पीआर हो, पल्मोनरी वाल्व का रीगर्जिटेशन हो, ठीक है. दूसरा आपका क्या हो रहा था कि डायसिस्टोलिक जब इट्स रैपिड फिलिंग फेज था, उसमें एओटिक वाल्व ओपन हो रही थी. तो ओपनिंग का कोई प्रॉब्लम हो मीन स्टेनोसिस हो. तो ये दो कंडीशंस याद रखें डायसिस्टोलिक के साथ कि फिलिंग के वक्त एओर्टा और पल्मोनरी को बंद होना है, तो उसमें कोई लीकिंग हो रही है, एआर पीआर, या फिर आपके पास एओटिक वाल्व एट्रियोवेंट्रिकुलर एवी वाल्व, जो राइट, जो एट्रियम और वेंट्रिकल को कनेक्ट करती है, वो वाल्व को ओपन होना है रैपिड फिलिंग फेज के लिए, वो अगर ओपन नहीं हो पा रही, स्टेनोटिक है, तो फिर आपके ये तीन टाइप के मर्मर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है. तो ये आपका कार्डियक साइकिल के साथ इसका कनेक्शन हो गया. Okay, so this is the just the summary which we have discussed, the cardiac murmurs. So if we can see over here the most important ones, so let me mark it, let me revise this chart because this chart is important. So if you can see over here, the left lower sternal border, the most important one, I told you this, but you can see कि atrioventricular valve with regurgitation. इसमें जो important word है वो regurgitation है. मैंने आपको क्या बात बताया था कि आपका ventricular septal defect हो या tricuspid regurgitation हो या MR हो, mitral valve पे regurgitation हो, कोई भी regurgitation होना जरूरी है. सिर्फ अगर आपका कॉमन एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व अगर आपका प्रॉब्लम है लेकिन रीगर्जिटेशन नहीं है तो मर्मर प्रोड्यूस नहीं होगा. लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर मर्मर के लिए, पैन सिस्टोलिक मर्मर के लिए आपके पास क्या चीज इंपॉर्टेंट है, या तो आपको सेप्टल डिफेक्ट मिले या फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व में रीगर्जिटेशन मिले, ट्राइकस्पिड लेवल पे या मिट्रल लेवल पे, ठीक है. अपर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर मैंने दो बताए थे आपको, एक पल्मोनरी स्टेनोसिस बताया था और एक एओटिक स्टेनोसिस बताया था, एएसडी भी बताया था आपको, ठीक है. ये सिस्टोलिक मर्मर की बात बता रहे हैं. इसमें उन्होंने पीडीए दिया हुआ है बट डोंट रिमेंबर, होता है ये अपर टाइप, अपर पे ही होता है, इसका मर्मर मिलता है आपको अपर है, लेकिन उसका करेक्टर बेसिकली कंटिन्यूअस पे होता है. इन्होंने साइड बताई है कि अपर में ही मिलता है. दूसरा, इसी अपर साइड पे आपको डायसिस्टोलिक मर्मर, पल्मोनरी और एओर्टा के जो डायसिस्टोलिक मर्मर्स है वो भी आपको इधर ही मिलते हैं. पल्मोनरी रिगर्जिटेशन है तो राइट साइड पे, एओटिक लेफ्ट साइड पे अपर स्टर्नल पे मिलेगा, और एओटिक रिगर्जिटेशन है वो भी अपर लेफ्ट पे मिलेगा. ये प्लीज प्लीज क्लियर कर लें कि एओटिक स्टेनोसिस का जो मर्मर है ना वो बहुत अच्छा आपको मिलता है राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर पे, राइट अपर स्टर्नल. लेकिन एओटिक के दो एरियाज होते हैं, एक एओटिक 1 एरिया होता है और एक एओटिक 2 एरिया होता है. तो एओटिक 1 एरिया तो हम राइट साइड के अपर स्टर्नल बॉर्डर को बोलते हैं, ठीक है, अपर सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे रखना होता है. राइट साइड पे अपर सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे स्टेथ रखते हैं, ये A1 एरिया. A2 एरिया आपका कहां पर होता है, ये आपका लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर के नीचे ही होता है, थर्ड स्पेस पे होता है, सेकंड पे नहीं तो थर्ड स्पेस पे होता है A2. और ये स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट होता है AR में. यहाँ पे हम AR के लिए मैनुवर करवा के आगे बिठा के एक मैनुवर करवाते हैं, सांस को एक्सपेल करा के रोकवाते हैं, और AR का मर्मर टिपिकली इस A2 एरिया पे सुनते हैं, ठीक है. तो ये लेफ्ट साइड पे आपको एओटिक रीगर्जिटेशन का मर्मर बहुत अच्छा मिल रहा होता है. तो यू हैव टू इफ, तो अगर कभी एओटिक स्टेनोसिस का मर्मर लेफ्ट साइड पे भी मिल जाए तो परेशान होने की बात नहीं है. एओटिक स्टेनोसिस की सबसे अच्छी बात यह कि वो कैरोटिड पे आपका रेडिएट करता है जहां से आप उसको पिक कर लेते हैं, ठीक है.
So aortic के you have two areas. So this is very clear कि aortic 1 and aortic 2. That is why upper left में आपका लिखा हुआ है aortic. नेक में कौन सा मर्मर रेडिएट करते हैं? दो हैं. इन्होंने एक एओर्टिक स्टेनोसिस बताई और एक वीनस हम बताया. तो वीनस हम वैसे आपने याद रखना है कि कंटिन्यूअस मर्मर के अंदर आपका जो है एक और डिफरेंशियल वीनस हम भी आ गया. सो वीनस हम इज अ बिनाइन मर्मर. ये आपके बिनाइन की कैटेगरी में आता है, जैसे इनोसेंट मर्मर है. बैक पे कौन से रेडिएट करते हैं? बैक पे जो मर्मर सुनाई देता है वो आपका कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा है, पल्मोनरी स्टेनोसिस है. और इफ यू टॉक अबाउट कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस में एवी मैलफॉर्मेशंस एंड कोऑक्टेशन का भी आपको बैक पे मिल सकता है. तो कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा का बहुत ही जनरलाइज्ड है, वो इतना स्पेसिफिक मर्मर नहीं होता. यू कैन से समटाइम कंटिन्यूअस, समटाइम आपको बैक पे मिल रहा होता है, समटाइम आपको अपर लेफ्ट साइड पे मिल रहा होता है. कोऑक्टेशन का इतना स्पेसिफिकली मर्मर की वो स्पेस नहीं होती. बट बैक में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पल्मोनरी स्टेनोसिस है. व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ऊपर के मर्मर देखो, जो कि ये वाले मर्मर है जो भी अभी हमने अपर लेफ्ट वाले डिस्कस करे, इसमें पल्मोनरी स्टेनोसिस भी था, एएसडी भी था. तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, पीएस और एएस है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए या अदर के साथ डिफरेंशिएट करने के लिए आप बैक सुनते हो. जब भी आपको अपर लेफ्ट पे मर्मर मिलता है, बैक सुनते हो. अगर बैक में भी मर्मर की सेम इंटेंसिटी हो, द वर्ड इज सेम इंटेंसिटी हो, दैट मींस इट इज रेडिएटिंग टू द बैक and it means it is pulmonary stenosis. Okay, clear? Now we talk about what is innocent murmur. Innocent murmur का क्या criteria होता है? So this is very important. Innocent murmur is asystolic murmur होते हैं, कभी भी diastolic नहीं होते. सॉफ्ट नेचर होती है इनकी, ठीक है. सिस्टोलिक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट होंगे. लैक ऑफ रेडिएशन, कभी भी रेडिएशन नहीं होगी. एज इनकी लेफ्ट स्टर्नल एज है, ठीक है ना. ऑल्टरेशन होती है इसकी इंटेंसिटी में अकॉर्डिंग टू पोजिशनल चेंजेस. सुपाइन लेटेंगे या बैठेंगे तो उससे ऑल्टरेशन होगी. कार्डियोवैस्कुलर एग्जामिनेशन अदरवाइज बिल्कुल नॉर्मल होगी. और इसकी इंटेंसिटी हमेशा जो है वो लेस देन 3 होगी, क्योंकि 3 में आपका क्या चीज आ जाती है आपकी, जब भी ग्रेड 3 का मर्मर है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर थ्रिल मौजूद है. क्या है मौजूद उसके अंदर? थ्रिल मौजूद है. तो ये इनकी जो अगर ग्रेड करें मर्मर को, इट शुड बी लेस देन 3. Okay, so they are innocent murmur. Now after the innocent, now we talk about the heart failure. As हमारा scenario के अंदर heart failure was there, so we talk about the heart failure and then we will going to end inshallah. तो heart failure का थोड़ा सा discuss करना है, उसकी pharmacology discuss करनी है, and then we going to end this session inshallah. Heart failure के क्या sign and symptoms हैं? Heart failure के sign and symptoms are: in front of you, the child will present with the breathlessness, the child is having poor feeding, recurrent chest infection, and sweating. You can see. What are the signs? These are the symptoms: breathlessness, sweating, poor feeding, and this. Now we have to talk about the signs of the heart failure. Signs are there. The child will be failure to thrive, tachypneic, tachycardic, maybe heart murmur there, gallop rhythm there, enlarged heart would be there, and hepatomegaly would be there. Now talk about the causes. This is very important. So you can see the causes of the heart failure is according to the age. So you should see the age when you are seeing the heart failure. So if it is present in the neonatal age, so if it's neonate, always think about duct dependent lesion, especially the obstructed systemic circulation, which include HLH, critical aortic valve stenosis, severe coarctation of aorta, and interrupted aortic arch. So these are the under a category of neonates. If we talk about infants, so infants may normally heart failure आपके high pulmonary blood flow CHD की वजह से. So those congenital heart disease which are associated with high pulmonary flow, which include VSD, AVSD, and large PDM. If you talk about older children, they have various causes. Among them, you can see Eisenmenger. If it is associated with right heart, rheumatic heart disease can present with the failure. Cardiomyopathy is associated with the failure. So these categories are used to identify and understand the progression and impact. In the first week of the life, if we have talked about heart failure is usually due to the obstruction.
after the first week. So if the age is very important, if the child present after the first week, think about it is due to the overload. Left to right shunt, it is due to the increased pulmonary flow. So what are the causes of the heart failure? We all know that as the pulmonary vascular resistance fall, इनका अच्छा अब ये इस सवाल का जवाब है कि आपको क्यों जो है वो 6 वीक फॉलोअप पे मरमर मिला था, पहले मरमर नहीं मिला था। तो इसका रीजन ये है कि आपका जो मरमर है वो प्रोड्यूस होता है विद द डिफरेंस ऑफ द ग्रेडियंट। डिफरेंस ऑफ द ग्रेडियंट क्यों मैंने कहा, क्योंकि जब बेबी बॉर्न होता है हमने क्या पढ़ा था कि ग्रेजुअली पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, वेसल्स की रीमॉडलिंग होती है, स्मूथ मसल्स की रीमॉडलिंग होती है। तो क्या होता है कि आपके पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही होती है और एट द सेम टाइम आपकी सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही होती है। तो जब बेबी बॉर्न हो रहा होता है तो ये अपने इंक्रीजिंग इसका स्टार्ट हुआ हुआ होता है और इसका डिक्रीजिंग जस्ट स्टार्ट हुआ हुआ होता है। दोनों में एसएच आपस में इतना प्रेशर का डिफरेंस नहीं होता। तो जब प्रेशर का डिफरेंस नहीं होता तो कितना भी बड़ा लीजन क्यों ना हो, वीएसडी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आपका आपस में प्रेशर डिफरेंस नहीं है तो कोई ब्लड फ्लो आगे पीछे नहीं होगा। ब्लड फ्लो विल रिमेन इन दोज चैम्बर बिकॉज फ्लो होने के लिए, मूव करने के लिए यू शुड हैव अ डिफरेंस। तो जैसे जैसे बेबी जो है वो न्यूनेटल लाइफ से आउट होता है उसकी वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो रही होती है, तो प्रेशर जो है वो आपका डिफरेंस क्रिएट होता है। प्रेशर डिफरेंस क्या क्रिएट होता है कि एसवीआर बढ़ा हुआ है और पीवीआर कम है। तो फ्लो कहां से होगा, लेफ्ट यानी कि हाई प्रेशर सिस्टम से टुवर्ड्स लो प्रेशर सिस्टम विच इज पल्मोनरी। दैट इज वाई पल्मोनरी का फ्लो एकदम इंक्रीज होगा और आपके पास हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। अगर आपके पास हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं देन यू विल गोइंग टू लेबल इट एज अ लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अगर हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स नहीं होंगे इट मींस दिस इज स्मॉल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। So as the pulmonary vascular resistance fall, increase in the left to right shunt, increase pulmonary blood flow, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशियली हमेशा याद रखना ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, बाद में जाके पहले ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, बाद में स्मूथ मसल्स की रीमॉडलिंग होगी 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 और फिर आपकी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो इनिशियली फ्लो इंक्रीज हुआ देन पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो जब भी आपके पास वीएसडी के बच्चे आते हैं इनिशियली आप उनको कैसे मैनेज करते हो, आप उनका प्रीलोड कम करते हो, आप उनका वॉल्यूम कम करते हो, आप उनको जस्ट डायूरेटिक्स पे रखते हो, आप उनके लिए क्या करते हो, डायूरेटिक्स। जब वो लेटर ऑन जब हाइपरटेंशन डेवलप करते हैं देन ओनली यू कैन यूज सिल्डेनाफिल, बोसेंटेन, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो प्लीज वेरी क्लियर कि हाइपरटेंशन क्या है और पल्मोनरी फ्लो इंक्रीज आपका क्या है। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा होता है फ्लो इंक्रीज होने की वजह से एंड देन यू हैव अ ब्रेथलेसनेस एज वेल। ठीक है, तो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दिस इज वी मैकेनिज्म ऑफ दैट आंसर कि वो क्यों हुआ था। तो ये भी सिम्टम्स ऑफ द हार्ट फेलियर विल इंक्रीज अप टू 3 months। इट्स सब्सिक्वेंट, आप देखो अब टाइम वाइज क्या होना शुरू होगा, अब यहाँ पे नोटिस करो, ये देखो इनिशियल लेवल पे क्या हुआ, 3 months में जाके हार्ट फेलियर के साइन इंक्रीज हो जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने आपको क्या बात बताई थी कि पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस स्टार्ट होगी बढ़ना। क्यों रेजिस्टेंस स्टार्ट होगी, रीजन बता दिया, ड्यू टू लेफ्ट टू राइट शंट। अगर आपने ट्रीट नहीं किया, इफ लेफ्ट अनट्रीटेड चाइल्ड डेवलप करेगा आइजनबर्गर। और एक और बात मैं आपको ये बताऊं, यहाँ पे देखो कि जब आपकी पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू होगी ना आपके सिम्टम्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। आपके रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन नहीं होगा, आपकी पल्मोनरी कंजेशन नहीं होगी, आपकी ब्रेथलेसनेस नहीं होगी इनिशियली। आप बीच का ऐसा फेज आएगा जो हनीमून कह लो, पहले बच्चा बहुत सीखता फ्लो इंक्रीज होने की वजह से, फिर बच्चे को बाद में आइजनबर्गर होगा, लेकिन एक बीच का फेज होगा जहां पे फ्लो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सेम हो जाएंगे, प्रेशर सेम हो जाएंगे, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा ब्रेथलेसनेस खत्म, चेस्ट इन्फेक्शन नहीं होंगे, ये आपका हनीमून पीरियड बीच में आ जाएगा। सही है,
It is irreversible raised pulmonary vascular resistance resulting from chronically raised pulmonary arterial pressure. शंट पे रिवर्स हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, एंड टीनेजर विल स्टार्टेड टू ब्लू. सो यू हैव अनदर केस, आप अभी अभी रीड करेंगे अपनी ही बुक का, कि उसमें VSD जो है वो प्रेजेंट करेगा एज अ ब्लू चाइल्ड, एज अ साइनोटिक चाइल्ड, बट उसमें एज आपको देखनी होगी कि वो टीनेजर स्टेट होगी. आइजनमेंगर इट टेक्स 10 to 12 years. It does not occur so quickly. Okay. Abnormally, what happened now? We talk about the drugs. As I told you, drugs are very important. How you going to manage heart failure? So heart failure को manage करने के लिए पहले देखें कि बॉडी में अगर उसे मेडिकेशन से ट्रीट करना है तो बॉडी में मैकेनिज्म कौन से एक्टिवेट हुए जिनके अगेंस्ट आपने काम करना है. So you can see if you have a decreased heart failure, आपका क्या होगा? हार्ट फेलियर में स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा और कार्डियक आउटपुट भी कम होगा. तो जैसे ही आपका वॉल्यूम कम होगा, आपके न्यूरोनल भी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा और हार्मोनल भी, दो रिस्पॉन्स एक्टिवेट होंगे अर्जेंट. सबसे पहले क्या चीज होगी? सिस्टम आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा जैसे ये आउटपुट डिक्रीज होगा. सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करेगा? एकदम से आपका एड्रेनलिन को इंक्रीज करेगा. एड्रेनलिन कहाँ से आपका आएगा? आपकी ग्लैंड्स के अंदर है, आपकी जो सुप्रारीनल ग्लैंड्स है उसके अंदर एड्रेनलिन मौजूद है. आपके एड्रेनलिन जो है वो प्रोड्यूस होगा, और एड्रेनलिन क्या काम करेगा वो मैं आपको भी बताऊंगी. ठीक है, एड्रेनलिन का एक्शन बताऊंगी, बट बेसिकली एड्रेनलिन के दो एक्शन है, हम यहीं पे बात कर लेते हैं. एड्रेनलिन के दो एक्शन आपको याद रखने मैकेनिज्म्स. एड्रेनलिन हार्ट पे भी काम करता है, एड्रेनलिन हार्ट पे भी काम करता है और वैस्कुलेचर पे भी काम करता है. हार्ट पे क्या काम करेगा? ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करेगा. वैस्कुलर पे क्या काम करेगा? मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करेगा, आफ्टर लोड इंक्रीज करेगा. मसल जितनी स्मूथ मसल, वैस्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी उतनी वो होगी, आफ्टर लोड इंक्रीज होगा. एक तरफ सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट रखेंगे तो बॉडी में क्या होना शुरू हो जाएगा? हार्ट ऑलरेडी फेल्ड है, अब आपने आफ्टर लोड बढ़ा दिया. व्हाट डू यू मीन बाय प्री लोड? प्री लोड होता है वॉल्यूम, आप कितना वॉल्यूम दे रहे हो. आफ्टर लोड क्या होता है कि कितनी वेसल्स के अंदर रेजिस्टेंस है. ठीक है, तो वेसल्स अगर बहुत कॉन्ट्रैक्टेड होंगी, हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा उसके अगेंस्ट ब्लड पुश करने में. जस्ट टेक अ ब्रेक, आसान हो रही, फिर हम बात करते हैं. तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या क्या काम हो रहा है. एक तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, दूसरा आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम एक्टिवेट हो गया. जैसे ही रीनल फ्लो कम हुआ, ठीक है, रीनल के पास ब्लड फ्लो कम हुआ, रीनल ने प्रोड्यूस किया रेनिन, रेनिन ने कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिनोजिन को इनटू एंजियोटेंसिन. एंजियोटेंसिन 2 का आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें कि वो भी वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा रहा है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा है. उसने प्रोड्यूस किया एल्डोस्टेरॉन. एल्डोस्टेरॉन आपको पता है क्या काम करता है? आपका वाटर को और सोडियम को रीएब्सॉर्ब करता है. ठीक है, उसकी वजह से एडीएच भी रिलीज हुआ. एडीएच भी फर्दर वाटर को रीएब्सॉर्ब कर रहा है. वॉल्यूम आपका होता ही जा रहा है, बॉडी के अंदर रिजर्व होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. हार्ट पंप नहीं कर रहा, बॉडी समझ रही है वॉल्यूम नहीं है, बॉडी हर तरीके से वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश कर रही है. ठीक है, और ये सारे फैक्टर्स कुछ देर तक तो काम करेंगे, पर अल्टीमेटली जब हार्ट के ऊपर आप धक्का लगाने को भी ज्यादा कह रहे हो, आफ्टर लोड भी बढ़ा रहे हो, आप उसका वॉल्यूम भी बढ़ा रहे हो, प्री लोड भी बढ़ा रहे हो, हार्ट विल गोइंग टू फेल एट द एंड. ठीक है, तो ये आपका मैकेनिज्म. अब आप कौन सी मेडिकेशन पे किस लेवल पे काम करते हो, ये आप मेडिकेशन की लिस्ट है. ये मैकेनिज्म्स क्यों बताए गए थे? बिकॉज ये लिस्ट आ रही थी. ठीक है,
So you can see over here what are the drugs which use for heart failure. So initially we use diuretics. We already discussed diuretics का role क्या है, reduce करना है preload को. हम डिटेल में डायूरेटिक्स को रीनल के सेशन में डिस्कस करेंगे. अभी जस्ट हमें ये पढ़ लेना इधर कि हमें प्री लोड वॉल्यूम को कम करने के लिए डायूरेटिक्स यूज करना है. वॉल्यूम को क्यों कम करना है? वॉल्यूम बहुत ज्यादा रिटेन हो रहा है बिकॉज ऑफ एल्डोस्टेरॉन, बिकॉज ऑफ एक्सेस एडीएच. सेकेंड हम क्या यूज कर रहे हैं? एसी इनहिबिटर्स. एसी इनहिबिटर्स हम किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम जो एक्टिवेट हुआ है उसके अगेंस्ट, क्योंकि हमें इतना वॉल्यूम नहीं बढ़ाना. इतना वॉल्यूम बढ़ा लेंगे हार्ट कैसे उसको एडजस्ट करेगा? तो ये क्या करेंगे? एसी इनहिबिटर्स हमारे पास दो हैं. एक हमारे पास एंजाइम इनहिबिटर्स हैं और एक एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट है. तो एंजाइम इनहिबिटर क्या करते हैं? एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट ही नहीं होने देंगे इनटू एंजियोटेंसिन 2. जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं बढ़ेगा तो बॉडी के अंदर फीडबैक सिस्टम होता है. बॉडी क्या इंक्रीज कर लेगी? अपने रेनिन को. तो अगर फीडबैक सिस्टम नहीं समझ आ रहा है, लीव इट फॉर एंडोक्रिनोलॉजी, हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे. जिनको समझ आ रहा है दैट इज ओके. तो आपका रेनिन इज द फर्स्ट प्रोडक्ट. रेनिन प्रोड्यूस करता है एंजियोटेंसिन 1. एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है इनटू 2. जब 2 नहीं बनेगा तो पीछे वाले चीजें बढ़ती जाएंगी. रिड्यूस होगा एल्डोस्टेरॉन, रिड्यूस होगा आपका वॉल्यूम प्री लोड बाय वीनस डायलिटेशन. अब आप यहाँ पे एक और चीज नोटिस करें कि एंजियोटेंसिन जो था, मैंने आपको क्या बताया था, वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है. वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है. ऊपर आपने नोटिस किया कि देखो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर कौन कौन से रोल प्ले कर रहे हैं? सिंपैथेटिक सिस्टम प्ले कर रहा है, एंजियोटेंसिन 2 कर रहा है, एंडोथेलियन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. इम्पेयर्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज इम्पेयर्ड हो गया. नाइट्रिक ऑक्साइड यूज होती है एज अ वेजोडाइलेशन. तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं है तो क्या हो रही है? वेजोडाइलेशन हो रही है. वेजोडाइलेशन यहाँ पे नोटिस करो वीनस लेवल पे भी हो रही है और वैस्कुलर लेवल पे भी हो रही है, मींस आर्टीरियल लेवल पे भी हो रही है. सो वीनस डायलिटेशन होगी तो प्रीलोड कम होगा, आफ्टर लोड भी कम होगा. अगर आप वेसल्स के रेजिस्टेंस कम करो, आर्टीरियल लेवल पे वेजोडाइलेशन करो. तो एंजियोटेंसिन 2 इज अ पोटेंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर. सो ये आपके जो एसी इनहिबिटर्स हैं, ये आपके सेलेक्टिव वेजोडाइलेशन नहीं है बल्कि वीनो आर्टीरियल बोथ डायलिटेशन. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेशली टास्क में कंफ्यूज करने के लिए. एल्डोस्टेरॉन में, एल्डोस्टेरॉन हमने पता है कहाँ पे काम करता है? रीनल ट्यूब्यूल्स पे काम करता है. बेसिक इसका फंक्शन क्या होता है? वाटर को और सोडियम को एब्जॉर्ब करना, पोटेशियम को और हाइड्रोजन को बॉडी से निकालना. ठीक है. तो जब आप ये एंटागोनिस्ट यूज करोगे, एंटागोनिस्ट यूज करोगे, फंक्शन रिवर्स होगा. अगर अभी नहीं समझ आ रहा, डोंट वरी, इट इज कम इन रीनल पार्ट में सब डिटेल में आएंगे. तो आपका जब फंक्शन रिवर्स होगा, वाटर और सोडियम बॉडी से निकलेगा और पोटेशियम और हाइड्रोजन रिटेन होगा. तो जब भी आप स्पाइरोनोलैक्टोन देते हो, आप ऑलवेज उनको ऐड करते हो फ्यूरिसिमाइड के साथ. फ्यूरिसिमाइड पोटेशियम निकालता है, स्पाइरोनोलैक्टोन रिटेन करता है. इस तरह आपका बॉडी का पोटेशियम नॉर्मल रहता है. बीटा ब्लॉकर्स, इसमें स्पेसिफिकली देखो आपने क्या कहा, बीटा ब्लॉकर्स क्यों यूज किए गए? कि मैंने आपको क्या बताया था कि जो एड्रेनलिन है जो हार्ट पे काम कर रही है, वो बीटा ब्लॉक, वो बीटा से यूज, वो बीटा रिसेप्टर्स पे काम करी. तो अगर हम अभी आपको मैं आगे शो करूंगी कि हमारे पास हार्ट में, इन हार्ट वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स. हमारे हार्ट में एक बीटा 1 होते हैं, ठीक है, और बीटा 1 होते हैं और बीटा 2 होते हैं. ये दो हमारे पास होते हैं. ठीक है. तो जो एड्रेनलिन है, ये जितने भी सिंपैथेटिक सिस्टम है, ये हमारे बीटा 1 पे काम करते हैं. तो हमने बीटा ब्लॉकर यूज किया. बीटा ब्लॉकर में सिलेक्टिव यूज किया एटेनोलॉल. ये हमारे पास सिलेक्टिव आ गया है. ठीक है. प्रोपेनोलॉल जो है वो हमारे पास नॉन सिलेक्टिव है. तो इसने क्या करना है? सिवाय सिर्फ हार्ट पे काम करना है. इंक्रीज करेगा स्ट्रोक वॉल्यूम, डिक्रीज करेगा आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी और लेफ्ट वेंट्रिकुलर साइज. तो आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी और वेंट्रिकुलर साइज को ये डिक्रीज करेगा. और सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि आप ये देख लें कि लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप लॉन्ग टर्म एटेनोलॉल यूज करोगे, इट ब्लॉक्स द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द ओवर एक्टिव सिंपैथेटिक एक्टिविटी. ये आपके ब्लॉक करेगा डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ ओवर एक्टिव सिंपैथेटिक, क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी का बहुत देर तक ओवर एक्टिव रहना खतरनाक है. तो ये इसको प्रिवेंट करेगा. अनदर आपके पास ये, अब आपके पास जो फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर 3 है जिसमें मिलेनिनोन है, ये वाली आपकी यूज होती है कार्डियक फेलियर के अंदर आपकी आइनोट्रोपिक्स. अब ये आइनोट्रोपिक्स के आपको फंक्शंस बता रहे कि आइनोट्रोपिक्स कहाँ का काम करती हैं. तो आइनोट्रोपिक्स में इसमें
इंपॉर्टेंट इन्होंने बात बताई कि पॉजिटिव आइनोट्रोप है और वेजोडाइलेटर भी है, ठीक है। इसमें एक और इसका फंक्शन जो सबसे ज्यादा मिलिनोन के साथ जो स्पेसिफिक है वो ये ल्यूसीट्रोपिक इफेक्ट है कि ये मायोकार्डियम को रिलैक्स भी करती है। बाकी सारी डोपामीन ये सब कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये ल्यूसीट्रोपिक है, ये आपको बायोकार्डियल रिलैक्सेशन भी देती है। मिलिनोन आपकी वेजोडाइलेटर भी है, वेसल्स को डायलेट भी करे। तो अभी अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है, एक और चार्ट भी मौजूद है टू मेक इट सिंपल, सो जस्ट अभी एक रीड दें बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम। अगेन आई एम टेलिंग यू दीज चार्ट्स अगर आप डेली बेसिस पे इसको मतलब स्टिक कर लें या उसे स्क्रीनशॉट्स लगा के अपने पास रख लें, डेली उनको रीड कर लें, तो फिर आपका फार्माकोलॉजी ऐसा हो ही नहीं सकता मिस हो। क्योंकि देखिए टास्क का जो पेपर है ना, प्लीज रिमेंबर मोर देन 50% इज योर फार्माकोलॉजी, मोर देन 50%, तो ये सब रट्टा है, तो इसको हम मिस नहीं कर सकते। नहीं नहीं समझा तो फिर हमसे लूज हो जाता है ये बात। तो दैट इज वाई उसको आपने पहले से ये उसको स्क्रीनशॉट्स लेके इन चार्ट्स को आपने उसको जो है ना रिपीट करते रहना, आपको फिर ये चीजें खुद ब खुद याद हो जाएंगी। डाइजॉक्सिन कहाँ पे काम करती है? डाइजॉक्सिन हमने अभी पढ़ा है, ये हमारे पास कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, इट इनहिबिट सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। कि आपके सोडियम पोटेशियम अगर एटीपीएस पे काम करिए तो सोडियम की एंट्री नहीं होने देगी, ठीक है ना। दैट इंक्रीजेस इंट्रासेल्युलर inhibit that increase intracellular sodium and secondary increase in intracellular ओके तो ये क्या करी, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो पंप है जो कि सोडियम को बाहर निकालेगा, पोटेशियम को अंदर लाएगा, अपनी जगह पे री ओरिजिनेट करेगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्शन होती है, नॉर्मली जब आप अगर आप देखें इसको कि आप जब ये कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है उसमें आपका सोडियम इन्वर्ट जाता है सेल के अंदर, फिर क्या होता है प्लेटू फेज होता है, ये कार्डियक साइकिल की बात कर रही हूँ। इसमें क्या होता है आपका कैल्शियम अंदर जाता है, पोटेशियम बाहर आता है। फिर आपके पास एक और फेज आता है रिलैक्सेशन फेज, यहाँ पे आपका पोटेशियम क्या होता है वो बाहर जाता है, ठीक है। तो ये अगर अंदर ही रहेगा सोडियम, इंट्रासेल्युलर सोडियम अगर अंदर ही रहेगा उसको फिर आपके पास पंप होता है सोडियम पोटेशियम पंप, ये इनकी पोजीशन को रिवर्स करता है। सेल के अंदर जो सोडियम जा चुका है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ये सोडियम को बाहर निकालता है। तो अगर ये पंप ब्लॉक कर देंगे, सोडियम अंदर ही रहेगा, तो ये और ज्यादा आपकी कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द डिजॉक्सिन, और ये आपको हमने अभी पढ़ा था कि ये जो है वो उसमें भी यूज होता है, कार्डियक इरिथमियाज में भी ये मेडिकेशन हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम जो है वो डिस्कस करें डोपामीन, डोब्यूटामीन, एड्रेनालिन, ये आपकी सारी आइनोट्रोपिक्स हैं। अच्छा मैं चाह रही थी ये पढ़ने से पहले पहले मैं आपको अपना चार्ट दिखा देती हूँ, दूसरा फिर मैं इस पे आती हूँ क्योंकि अभी फिर वो फिर थोड़ा सा समझना और उसको रिटेन करना आसान हो जाएगा। सो व्हाट आई मेड इट, हम एमसीक्यूज बाद में सॉल्व करते हैं, हम पहले ये चीज देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है, इससे भी पहले हम ये देखते हैं, हम ये देखते हैं कि देखिए हमारे पास कितने तरह के रिसेप्टर्स होते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप नोटिस करें कि हमारे पास अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, ये हमारे पास 4 तरह के रिसेप्टर्स हैं। जब हम आइनोट्रोपिक सपोर्ट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट आइदर दे आर फंक्शनिंग इन अल्फा और बीटा एंड ब्ला ब्ला। तो इसमें सिंपल जो अभी 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 जो हार्ट के लिए जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि अल्फा 1 जो है ना वो आपके वेस्कुलर लेवल पे काम करती है, वेसल्स में आपके अल्फा 1 होते हैं और ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं। पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज कराने का मतलब ये है कि वो आपके वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएंगे, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ये अल्फा 1 है। तो अल्फा 1 आपके पेरिफेरली वेसल्स के ऊपर है, आप इसको वेसल्स याद करें, पेरिफेरल है। फिर आप आ जाए अल्फा 2, आपको अभी याद रखने की जरूरत नहीं, कहीं पे भी अभी अल्फा 2 की बात नहीं है। बीटा 1 अगर आप देखें ये आपके हार्ट के ऊपर होते हैं और ये आपके हार्ट के रेट को बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर आप आ जाए बीटा 2, बीटा 2 अगर आप याद रखें तो अगेन ये वेसल्स के ऊपर है। तो ये याद रखना है बीटा 1 आपके हार्ट के ऊपर है और बीटा 2 आपके वेसल्स पे, और ये वेसल्स पे रिलैक्सेशन करा रहे, ये डायलेटेशन कराने, देखिए ये डायलेशन कराने, बीटा 2 जो है वो वेसल्स को डायलेट कराएगा। दूसरा बीटा 2 जो आपके प्रेजेंट होता है वो लंग्स में प्रेजेंट होता है, इट कॉजेज ब्रोंकोडाइलेशन। तो बस अभी इतना याद रखें कि अल्फा 1 वेसल्स के ऊपर है, वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है, बीटा 2 भी वेसल्स के ऊपर है, वो वेजो डायलेट कराता है। हार्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बीटा 1 है, ठीक है। अब अगर ये बेसिक अल्फा 1, बीटा 1 और बीटा 2 अगर याद हो गया है तो फिर अब हम उस पे जाते हैं उसके पीछे वाले उसके ऊपर के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट आइनोट्रोपिक सपोर्ट्स। अब यहाँ पे इस चार्ट के अंदर
ये भी एसओपी से अगर आप यहाँ पे देखें, जो आपके एड्रेनलिन है, सिर्फ टॉक अबाउट द मोस्ट कॉमन, जो हम एड्रेनलिन दीज डेज हम टॉप मोस्ट एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन यूज करते हैं। तो एड्रेनलिन अगर आप देखें तो आपके अल्फा और बीटा दोनों पे काम करती है, जो मैंने आपको कहा था। अल्फा पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन या अल्फा 1 रिसेप्टर, इट्स नॉट अल्फा 2। ये अल्फा 1 पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराती, बीटा 1 पे आपके हार्ट रेट को इंक्रीज कराती। सो इट इंक्रीजेस द हार्ट रेट, इट कॉजेज एसपीआर, increase systemic vascular resistance and contractility, while noradrenaline अगर आप देखें सिर्फ और सिर्फ अल्फा पे काम करती है। इट इज अल्फा एड्रिजेनिक रिसेप्टर, दोनों काम को बढ़ाते हैं, इनहेंस करते हैं, या एगोनिस्ट है। तो इट्स अल्फा, इट ओनली कॉजेज वेस्कुलर पे काम करती है, इसका हार्ट पे कोई रिलेशन नहीं है। ये इंक्रीज करेगी आपके एसवीआर को, ये इंक्रीज करेगी आपके ब्लड प्रेशर को, और अगर आप बहुत ज्यादा डोज देंगे और बहुत ज्यादा सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो ब्लड फ्लो भी हैम्पर हो जाएगा, बाज दफा आपकी लिम्ब की गैंग्रीन भी करा देती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप नॉर एड्रेनलिन बढ़ाएं तो आप देखें, और आपकी जब सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, फ्लो कम होगा, जहां पे भी रेजिस्टेंस बढ़ती है, फ्लो कम होता है, आपकी पेरिफ्रीज ठंडी होना शुरू होती है, ठीक है। तो नॉर एड्रेनलिन पेरिफेरल काम करती है, एड्रेनलिन दोनों जगह पे काम करती है। अब सी द डोपामीन, सो डोपामीन कहाँ पे काम कर रही है? तो डोपामीन आपकी अफेक्ट कर रही है अल्फा और बीटा, इज जस्ट लाइक एड्रेनलिन, सेम, इट जस्ट लाइक एड्रेनलिन, it works on both alpha 1 and beta, while dobutamine if you talk about, dobutamine generalized काम कर रही है, बीटा 1 पे भी करती है और बीटा 2 पे भी करती है। प्लीज रिमेंबर, dobutamine बीटा 1 पे जब काम करती है तो आपके हार्ट रेट को बढ़ाती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है। जब बीटा 2 पे काम करती है तो ये वेजो डायलेशन करा के रिड्यूस करती है आपके एसवीआर को। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वेसल्स को डायलेट करती है एट बीटा 2 पे काम करती है। सेम अगर आप मिलियरनोन की बात करें तो मिलियरनोन भी जो है वो आपकी फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनहिबिटर है। कार्डियक मायोसाइट और स्मूथ मसल में आपकी इंट्रासेल्युलर कैल्शियम को इंक्रीज करता है। तो इंट्रासेल्युलर आप कैल्शियम बढ़ाएं या इंट्रासेल्युलर सोडियम बढ़ाएं, दोनों का काम क्या है कि आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और ये भी एक्ट करता है एज अ वेजो डायलेटर। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो फॉस्फोडाइस्ट्रेस हमने पढ़े थे अभी, 5 पढ़े थे, 3 पढ़े थे, ये ऑल अल्टीमेटली वेजो डायलेशन करवा रहे होते हैं, ठीक है, इस पाथवे के थ्रू। तो हमने सबसे पहली डायग्राम आज डिस्कस की थी, ठीक है। डॉक्टर सभी का समझ आ रहा है? ये बहुत ज्यादा हो गया जी आ रहा है। है। एक्चुअली पूछे जाते हैं अल्फा बीटा में ना, बहुत ज्यादा ये लोग कंफ्यूज करते हैं, दैट इज व्हाई। अच्छा, अब हम यहाँ से इनका जल्दी से ये फंक्शंस पढ़ लेते हैं। ये हमारी अहम आइनोट्रोपिक सपोर्ट ड्रग्स थी जो इन्होंने यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो जस्ट अब हम देख लेते हैं। देखें, डोपामीन अब हम रिवाइज करें, कैटाकोलामीन that stimulate beta 1 and alpha 1. So alpha 1 at the level of vessels, beta 1 at the level of heart. डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स है। लो डोजेस के अंदर आपको जो है ये vasodilation via dopaminergic response in the renal and splenic vascular beds. मिड रेंज के अंदर बीटा रिसेप्टर हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को करेगा। हाई डोज के अंदर ये अल्फा रिसेप्टर को यूज करेगा। तो अगर आप हाई डोज में डोपामीन दोगे तो अल्फा रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे। अगर आप लोअर डोज के अंदर दोगे, जैसे अक्सर हम डोपामीन जो है वो हमारी रीनल फेलियर में जब आउटपुट नहीं आता हम डोपामीन स्टार्ट कराते हैं, तो लो डोजेस में इट कैन कॉज वेजोडाइलेशन। वो यूज करता है अलग रिसेप्टर, वो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर है। लेकिन जब हाई डोज पे आप दे रहे हो तो वो अल्फा रिसेप्टर्स को यूज करेगा, वो वैस्कुलर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। तो ब्यूटामीन आपको अभी बताया कि इट इज सिंपैथोमिमेटिक विद स्ट्रॉन्गर बीटा देन अल्फा। इसका एक्शन एक्चुअली बीटा पे, बीटा 1 से ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को करेगा, बीटा 2 से ये वेजोडाइलेशन करेगा। एड्रेनलिन जो है वो अल्फा एगोनिस्ट है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, और बीटा 2 पे काम करके आपके हार्ट को बढ़ाता है। नाइट्रोप्यूरिसाइड इज अ वेजोडाइलेशन बाय रिलैक्सिंग वेस्कुलर स्मूथ मसल्स and increasing the inotropic effect of the heart. ये आपके vascular smooth muscle को वेजोडाइलेटर के तौर पे नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोप्यूरिसाइड हैं, ये सब वेजोडाइलेटर्स हैं, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? This is the treatment, heart failure treatment is there. Different treatment as there, adeno, adrenaline, immunoatenolol, blah blah blah. तो हम पढ़ते हैं।
sympathomimetic with stronger beta than alpha action, increases contractility by beta 1 plus beta 2. So if both beta 1 and beta 2, so most likely the answer would be dobutamine. very good. Protect against delirious effect of the chronic sympathetic activity. जो chronic sympathetic activity के delirious effect से protect करता है, वो क्या पढ़ा था अभी हमने? एटिनोलॉल. Atenolol. Very good. Reduces preload. Reduces preload by venous dilatation. Venous को भी dilate कर रहा है. And afterload को भी decrease कर रहा है peripheral vascular resistance. यानी आपकी डायलिटेशन दोनों लेवल पे, आर्टीरियल लेवल पे भी है और वीनस लेवल पे भी आपका ये काम कर रहा है, पेरिफेरली काम कर रहा है. तो व्हाट इज दिस? अभी हमने पढ़ा था ना, क्या था? मिलरिनोन. मिलरिनोन का जो फंक्शन हमने पढ़ा था ना, फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर था. वी डिस्कस्ड अबाउट इट. बट वीनस लेवल पे भी पढ़ा था उसका. एक चीज हमने दोनों में पढ़ी थी ना, एसी इनहिबिटर्स का पढ़ा था. ये एसी इनहिबिटर्स है. ये देखो, एसी इनहिबिटर्स का काम क्या है? प्री लोड को भी कम करना है और आफ्टर लोड, क्योंकि ये क्या करते हैं? वेजो डायलेशन कराते हैं. एंजियोटेंसिन 2 इज अ पोटेंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर फॉर बोथ वेसल्स, आर्टीरियल और वीनस. तो इन दोनों को जो डायलेट करा रहे हैं आपके एसी इनहिबिटर्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास क्या है? लूसीट्रोप. तो लूसीट्रोप एक ही है. वो कौन है लूसीट्रोप? जो रिलैक्स कराता है. मिलरिनोन. मिलरिनोन. वेरी गुड. अच्छा, राइट हार्ट फेलियर के हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स, एंकल एडीमा है, सेक्रल एडीमा है, ascites है. अगर लॉन्ग स्टैंडिंग रोमैटिक हार्ट डिजीज हो या पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो, लॉन्ग स्टैंडिंग अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो या पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो, किसी भी वजह से हो, तो अल्टीमेटली वो जो है वो राइट फेलियर इंश्यूज कर देती है. आई थिंक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं अपना. ठीक है. आई थिंक दैट्स फॉर ऑल. हम बाकी चीजें जो है वो फिर कल इंशाल्लाह जो है वो उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. जी जी ठीक. Thank you so much. Any questions? जी डॉक्टर आयशा, एफओपी के लिए कौन सी बुक वैसे डेसिग्नेटेड है? FOP के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है वो मैंने आपको बताया था,